that will go to company. However, there are certain provisions whereby company can make rules, internal rules to to give benefits to the employee. Most of the cases, these rules are there. We have a rules of scheme document which I am going to share later. In that, company can mention after completion of successful 5 years of Yogesh, this policy benefit will be given to Yogesh. That kind of clause can be there in a rules of scheme. So it is depend on company whether to give after 5 years, 10 years, or maybe after 1 year or 2 years. Minimum 2 years has to be there. That is what our rules of scheme says. But the ultimate owner of these policies company. In the event of a death, in the event of a maturity, in the event of a partial withdrawal surrender, claim will go to Max Life. So that is what very important here to understand. I'm moving ahead. What are the products that can be given under employer-employee scheme? So employer-employee scheme, we can give all products except certain products which are child education plans, pension insurance plans like GLIP, our MIP product, because how it is built, proposer and L2B are same in the MIP compulsorily. That is why we cannot give under employer-employee. Not because it is a traditional product, just because proposer and L2BI for MIP are same. That is why we cannot give under employer-employee. And cancer insurance plan. So apart from this, we can give all traditional products, all ULIP products, or all term products under employer-employee. Except, can you please repeat it again, please? Okay, yeah, sure. I think there is a noise from someone. Everybody, please go on a mute. Check your microphone. Yeah. So I was saying which products are allowed under employer-employee insurance. So all the products except for a certain products, which are designed for a different purpose, like child education plan. It is designed for a, child education. So that is why we cannot give under employer-employee. Our FGEP plan we cannot give under employer-employee, because plan is such that it is designed for a specific purpose of child education. Similar way pension plans. These plans are designed for a special purpose of retirement benefits. So that is why child plan, pension plans we cannot give under employer-employee insurance. Apart from that, MIP product we cannot give, just because it has a clause that proposer and L2BI are to be same. Because of this clause we cannot give. If MIP product में योगेश अगर अलाउ होता प्रपोजर L2BI अलग रखना, तो MIP भी दे सकते थे. ट्रेडिशनल प्लान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. It just that clause we cannot give. And apart from that, cancer insurance, again it is a specific purpose product. That is why we cannot give. Apart from that, we can give all our products, SWP, PWP, FTS, any traditional or ULIP product apart from this. Darshan sir, I'm so sorry, but I just missed that. Which clause under MIP we can't give? MIP, Akanksha, proposer and L2BI are to be same compulsorily. You cannot have a form 2 case under MIP. MIP में आप proposer को ही L2BI बना सकते हो, आप अलग अलग नहीं रख सकते. ये प्रोडक्ट का फीचर है. एवरीबडी आप सबको मालूम होगा ये फीचर है प्रोडक्ट का. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में वो दे भी सकते थे, बट क्या होगा ना आकांक्षा, अगर कंपनी तो प्रपोजर बन सकता है, बट कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन वो L2BI नहीं बन सकता. देयर हैज टू बी सम डिफरेंट L2BI. दैट्स द रीजन MIP नहीं दे सकते. अदरवाइज बहुत सारे लोगों को डाउट जाता है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट नहीं जाते क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में. ऐसी बात नहीं है. केवल MIP प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट डिजाइन of proposer L2BI same इसलिए नहीं दे पाते. Otherwise we could have given MIP as well. Okay, so Darshan sir, yeah, Archana this side. Yes Archana. Darshan sir, can we add riders also or riders नहीं दे सकते? We can give ADD riders. ADD rider जो है हम इसमें दे सकते हैं. Okay. इसके अलावा critical illness और ऐसा कोई rider नहीं दे सकते? No, other riders are not allowed. Only ADD riders जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में अलाउड है. अदर राइडर्स में
yeah, we have asked these questions to underwriting team. So उन्होंने बताया कि CI राइडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं जाएगा, कीमैन में भी नहीं जाएगा, वॉप राइडर है वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या कीमैन में नहीं जाएगा, एडीडी राइडर केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में जाएगा, एडीडी राइडर कीमैन में भी नहीं जाएगा. When we will have a कीमैन इंश्योरेंस, you know, तभी मैं बताऊंगा, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए we only have give ADD rider. Okay. The important thing, most important thing about employer-employee insurance, we all know, because of which employer-employee insurance is so famous and, you know, so popular, is tax implication at the time of premium. So whatever amount of premium company will pay is tax deductible. There is no limit of 1,50,000 like ATC. Whatever amount of premium. So Yogesh, same example, if you are an employee, you know, and your company wants to pay premium of 5 lakh, 10 lakh, maybe any amount. We have closed cases of 1 crore premium also, you know. So entire 1 crore rupees in that case is allowed as an expenditure for the company. So this is the biggest advantage of an employer-employee insurance plan. You know, no investment product allows, you know, to expense out in a profit and loss account. कोई भी investment product जो होता है company के लिए, वो profit and loss account hit नहीं करता. It will go to a balance sheet side of a company. However, employer-employee insurance एक ऐसा एकमात्र you can say asset class है या investment है जो आप उसको एज अ एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हो. इसीलिए व्हेन वी टॉक अबाउट दिसंबर मंथ, मार्च मंथ, जब टैक्सेशन का लोग प्लानिंग करते हैं, एडवांस टैक्स भरते हैं, सो दीज कंसेप्ट्स बिकम मोर पॉपुलर. यू नो, एक कंपनी के लिए, यू नो, देयर आर लिमिटेड वे ऑफ सेविंग टैक्सेस. इफ कंपनी इज इन अ गुड प्रॉफिट, कंपनी कैनॉट इंक्रीज इट्स प्रॉफिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, you know, cannot increase its expenditure rather to a certain extent. All the expenses are increased only to the proportion of increase in sales. Suppose example, I am just giving an example. एक कंपनी में अगर योगेश आपका ही एग्जांपल लेता हूँ, आपकी कंपनी मुझे पसंद आ गई है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो बार बार उसी का एग्जांपल देते जा रहा हूँ. सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर योगेश लास्ट ईयर समझ लो 5 करोड़ का था. ओके, सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर इस बार जो है 5 करोड़ से 6 करोड़ का हो गया. यू नो, सो 5 करोड़ से 6 करोड़ मींस कितना परसेंट इंक्रीज हो गया परसेंटेज वाइज? 20%, राइट? सो ऑल द एक्सपेंडिचर कैन आल्सो इंक्रीज अप टू 20%, मैक्स टू मैक्स. उससे ज्यादा नहीं हो सकता. यू कैनॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 50%. यू नो, टर्नओवर जिसी कंपनी का अगर 5% या 10% या 20% बढ़ता है, you know, 20% is on a higher side. Generally 5-10% ही turnover बढ़ता है year on year. You know, 10% 15% growth होती है. So you cannot you know, increase the expenditure. So expenditure आप नहीं दिखा सकते ज्यादा. Purchase sale आपको ऑलरेडी आपने शो किया होता है जीएसटी में. जब भी आप जीएसटी रिटर्न भरते हो तो आपको परचेज वहां पे दिखाना होता है. यू परचेज आपने ऑलरेडी शो कर दिया. आप अदर एक्सपेंसेस भी आप लिमिट में दिखा सकते हो. यू कैनॉट सडनली मेक a huge expenditure. So in such case, this is one of the concept where companies can take advantage of a life insurance product on life of its director or family member employees. यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरी कंपनी है, मैं डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, सो मुझे मालूम है मुझे टैक्स भरने को आ रहा है. यू नो, अगर मैं एक्सपेंसेस नहीं दिखाऊंगा तो आई विल हैव टू पे टैक्स. आई हैव नो ऑप्शन टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट. यू नो, एक्सपेंसेस में कितना दिखाऊंगा? सीए को बोल के मैंने सारा एक्सपेंसेस दिखा दिया. अब सीए बोलता है इससे ज्यादा दिखाऊंगा एक्सपेंसेस तो स्क्रूटिनी आ जाएगी. यू नो, एक लिमिट के बाद एक्सपेंसेस यू कैनॉट शो. यू नो, फेक एक्सपेंसेस हो जाएंगे. सो इन सच केस दिस स्कीम में अगर करता हूँ, ये खर्चा में करता हूँ, सो इट इज एक्चुअली नॉट अ एक्सपेंडिचर, इट इज अ इन्वेस्टमेंट. और ये इन्वेस्टमेंट भी किसके लिए है? मेरे खुद के लिए है, डायरेक्टर के लिए है, डायरेक्टर के फैमिली मेंबर के लिए, घर वाले लोगों के लिए है. सो कंपनी का पैसा यहाँ पे जा रहा है और घर वाले लोग जो है फैमिली मेंबर्स है, मोस्टली डायरेक्टर है या उसके फैमिली मेंबर्स है, उनके नाम पे एक पॉलिसी यहाँ पे ली जाती है. सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस. सो ये कंसेप्ट जो है मैंने अभी बताया, जहाँ पे डायरेक्टर या फैमिली मेंबर के नाम पे पॉलिसी ली जाती है, दिस इज द प्योर
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंसेप्ट फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव. 95% केसेस हमारे जो क्लोज होते हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर से होते हैं. ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंसेप्ट होता है, जब मैं कोई किसी भी एजेंट को बताता हूँ जनरली वो लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस मतलब क्या होता है. एक कंपनी होती है, वो अपने 50 लोगों के नाम पे, 50 एम्प्लॉय के नाम पे पॉलिसी लेती है. आपको भी यही लगता होगा जब भी आपने स्टार्ट किया होगा कि एक कंपनी अपने 100 लोगों के नाम पे पॉलिसी लेगी. बट ऐसे बिजनेस आता है, मैं नहीं बोल रहा ऐसे नहीं आता, बट ये जो बिजनेस आता है वो मे बी 1 और 2%, 3% या 5% आता होगा. 95% या उससे भी ज्यादा बिजनेस हमारा आता है जहां पर एक डायरेक्टर अपने नाम पे पॉलिसी लेता है या फैमिली मेंबर पॉलिसी लेता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स सेविंग, टैक्स डेफरमेंट रेदर. Okay, so this is the basic of employer employee. Before understanding the login process and entire thing, आपको दर्शन सर, एक सेल्स पिच समझना जरूरी है. या अर्चना आप पूछ रहे थे शायद कुछ. सर हाँ सर, मेरे को ये पूछना, आपने ये लाइन बोला दैट डायरेक्टर एंड फैमिली मेंबर, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ, मतलब आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को इंश्योरेंस दे रही हूँ, मतलब ऐसा क्या? एग्जैक्टली. इंडिया में आप बताओ, मोस्टली जो बिजनेस है, आई वुड से मोर देन 90% बिजनेस आर फैमिली ओन्ड बिजनेस. जहाँ पे फैमिली मेंबर्स ही डायरेक्टर होते हैं. जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता, इफ आई एम फ्रॉम, जनरली बिजनेस आर लेड बाय, यहाँ पे वेस्ट में तो गुजराती मारवाड़ी फैमिलीज, वहाँ पे दिल्ली में तो सभी लोग करते हैं. तो उनके जनरली फैमिली मेंबर्स होते हैं, फादर सन ब्रदर कजिन्स, यही सब लोग होते हैं. सो Even in इनके Ambani's, we can say family members are there. या बट मेरा बिल्कुल एक सही है. क्वेश्चन है दर्शन सर, यहाँ पर जब हम आउट ऑफ फैमिली मेंबर से बात करते हैं तो हाउ डज दिस पॉलिसी वर्क्स? हमारा मैं एक तो एजुकेशन मैं है कि टैक्स. हाँ जी. या मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, बिकॉज ऐसा बिजनेस 5% का आता है. सो आई एम ओके. इंटरेस्टेड इन द थिंग्स विच आर वर्किंग प्रैक्टिकली. आउट ऑफ फैमिली मेंबर भी हम लोग करते हैं, बट सिलेक्टेड कंपनी में, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, मे बी 50 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉयज, बट उसमें ज्यादा बिजनेस नहीं आता हमारा. मोस्टली आप पॉलिसी देखोगे, बीआई का डेटा निकाल के स्टैटिस्टिक्स देखोगे, सो एक या दो L2BI के नाम पे ही पॉलिसी जाती है ना. सो वी विल टॉक मोर अबाउट व्हाट इज सेलिंग एंड नॉट व्हाट इज नॉट सेलिंग. ओके, सो डेफिनेटली अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उसको आंसर करूंगा एंड में, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट. दैट इज अ वेरी ट्रेडिशनल पार्ट, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जैसा हो गया वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को देते हैं. मोस्टली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी. क्लोजली हेल्ड कंपनी मीन्स जहाँ पे फैमिली मेंबर्स आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस. जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा था, ब्रदर्स है, फादर सन है, ऐसे टाइप के कंपनी में ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंसेप्ट दिखता है. जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस इंडिया में ऐसे हैं, आई वुड से 90% से ज्यादा ऐसे है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स डायरेक्टर है. डायरेक्टर की वाइफ जो होती है वो उसको डायरेक्टर बनाते हैं या सैलरी दिखाते हैं, तो उनके नाम पे पॉलिसी ज्यादा बिकती है. इसके पीछे का पर्पस भी है. इसके पीछे का पर्पस ये है कि अपने घर वालों के नाम पे ही पॉलिसी रहती है ना, बाहर नहीं जाती. जो पॉलिसी का लाइफ टू बी इंश्योर्ड है वो मेरे ही घर वाले हैं, और मुझे बिजनेस में खर्चा भी मिल रहा है. पॉलिसी मेरे वाइफ के ही नाम पे है, आई एम अ डायरेक्टर, माय वाइफ इज अ डायरेक्टर, या पॉलिसी मेरे सन के नाम पे, या पॉलिसी मेरे नाम पे है. सो आई वुड से घर वालों के नाम पे ही पॉलिसी हो रही है मेरे बिजनेस से, और बिजनेस में खर्चा भी मिल रहा है. सो ये एक बेनिफिट बिजनेसमैन को दिखता है यहाँ पे. सो यही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पिच है. So basically, sir, just to clear the air, that family member should be a part of company. Then only I can take under employer. Yes. अगर वो कंपनी का पार्ट नहीं है तो नहीं होगा वो. Exactly. हम लोग वो देखेंगे किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते आने वाली स्लाइड्स में. बट एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसका नाम क्या है निखिल? इसका नाम क्या है कंसेप्ट का जो हम आज लर्न करने? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. या सो नाम में ही लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए. अगर वो रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो हम ये दे ही नहीं पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनर्स है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थोड़ा ना, वो उनका तो इक्वल स्टेक भी हो सकता है.
तो पार्टनर को हम नहीं देते ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, वी कैन नॉट गिव टू पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पार्टनर को नहीं दे सकते। और अब जैसे काफी सारे बिजनेसमैन में ऐसा भी होता है कि अंडर 18 का भी कोई उनका बच्चा हो सकता है जो उनके साथ बिजनेस करे। मैं बताऊंगा धीरे धीरे समझ में आएगा। एक स्लाइड है इसके बाद, उसमें मैं बताऊंगा किन किन को दे सकते हैं, किन किन को नहीं दे सकते, हु कैन बी L2BI, हु कैन बी प्रपोजर, दोनों एक्सप्लेन करूंगा मैं आने वाले स्लाइड्स में। ओके, तो आई थिंक बाय एंड ऑफ दैट स्लाइड आपके क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। लेट मी कंप्लीट फिनिश दिस स्लाइड, आई थिंक इसके बाद ही वो स्लाइड होनी चाहिए। सो मैं बता रहा था प्रोडक्ट, आई थिंक प्रोडक्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैंने बताया पिच क्या होना चाहिए, यू नो, जैसे आपको याद रखना है पिच ये होना चाहिए कि ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि जब भी मैं कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सेशन स्टार्ट करता हूँ ना, वो चाहे कोई भी ऑफिस हो, तो मैं उनको पूछता हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस मतलब क्या सर, आप बताओ। किसी भी एजेंट एडवाइजर से पूछता हूँ, आप बताओ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है, क्या आपके जहन में आता है। सो वो बताते हैं एक कंपनी होती है, वो अपने 100 एम्प्लॉय के नाम पे पॉलिसी देती है। ये दिमाग में लोगों के रट चुका है। बट ऐसा बिजनेस 1% आता है जो कि लोगों को लगता है अरे ये तो ग्रुप इंश्योरेंस है जो आप बोल रहे हो सर, एक कंपनी अपने 100 एम्प्लॉय को या 50 एम्प्लॉय को देती है। ये होता है, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये नहीं होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, बट इसका बिजनेस कितना कम परसेंटेज आता है। मोस्टली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तब काम आता है या प्रैक्टिकली तब बिकता है जब एक डायरेक्टर कंपनी का या ओनर होता है, यू नो, या उसके फैमिली मेंबर अपने नाम पे पॉलिसी लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डेफरमेंट एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन देयर नेम, यू नो, और फॉर द टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द कंपनी। एक कंपनी से पैसे निकालने का एक तरीका भी ये हो सकता है। सो ये आपको सबसे पहले किच होना चाहिए। सो इसीलिए अर्चना, जब मैं आपको पूछूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो यही आता है, एक डायरेक्टर अपने नाम पे पॉलिसी लेता है, ना कि सारे एम्प्लॉयज। तो आपके दिमाग में स्टार्ट में ये होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यही होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सुन के एक कंपनी होगी, उसके 100 एम्प्लॉय होंगे, यू नो, बट दैट शुड नॉट बी अ पिच इन योर माइंड। पिच शुड बी एक कंपनी होगी, क्लोजली हेल्ड कंपनी हम लोग टारगेट करेंगे, जिसके 1 या 2 एम्प्लॉय जो मेन एम्प्लॉय है, मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके नाम पे पॉलिसी दे रहे हैं। सो दैट पिच शुड बी योर इन माइंड जैसे हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट, टैक्स इम्प्लीकेशन। प्रोडक्ट के बाद टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है? प्रीमियम पेड इज एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो इनकम टैक्स में एक 37(1) करके एक सेक्शन है, आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस याद रखो 37(1) का एक इनकम टैक्स का सेक्शन है। उसके अंदर यू नो ये इनकम टैक्स का बेनिफिट, प्रीमियम का बेनिफिट रेदर मिलता है, वट एवर अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू पे, 1 करोड़ 10 करोड़ मे बी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट। आपकी अंडर राइटिंग अलाउ करनी चाहिए, दैट्स इट। अंडर राइटर ने जो अलाउ कर दिया उतना सारा प्रीमियम आप खर्चे में दिखा सकते हो। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वॉट एवर प्रीमियम इज पेड बाय अ कंपनी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है, whatever premium is paid by a company is not treated as a perquisite in the hands of a director or life to be insured, जो भी हो। So for example, योगेश, again I am coming to your example, आपकी कंपनी मुझे पसंद है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आप एम्प्लॉय हो। सो योगेश, अगर आपके कंपनी ने आपके नाम पे 5 लाख का प्रीमियम भरा है, ओके, यू आर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सो 5 लाख का प्रीमियम कंपनी को खर्चा मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 5 lakh company can show as a expenditure in profit and loss account, but that 5 lakh rupees will not be added to your income, Yogesh. Yes. It will not be a part of your salary, even though the policy is in your, you know, you are the life to be insured for this policy. However, it will not be treated as a perquisite or salary in your name. So इसका बेनिफिट यहाँ पे क्या आपको लगता है योगेश, क्या बेनिफिट है इस चीज का? आपके इनकम में इंक्लूड नहीं होगा इसका, आप बताओ। So, एक मैंने मेरे बिजनेस से कुछ पैसा निकाला, वहां पे भी मैंने टैक्स नहीं दिया, सेव किया, वो मैंने अपने इंश्योरेंस के लिए यूटिलाइज किया, और फिर भी मैंने टैक्स उस पे नहीं पे किया, तो मतलब मैंने डबल साइडेड टैक्स सेव किया। अदरवाइज अगर मैं उसे विड्रॉ करता किसी भी वे में, तो वो मेरी इनकम में ऐड हो जाता और आई हैव टू पे दैट टैक्स। एग्जैक्टली, एकदम बिल्कुल सही बात आपने बताई, जो मैं बताने वाला था एग्जैक्टली सिमिलर आपने बात बताई। दिस इज द मेन बेनिफिट। सी आकांक्षा, अगर आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, डायरेक्टर है,
आप पैसे लेते हो कंपनी से, जैसे ही आप पैसे लेते हो आपको टैक्स लगेगा. You know, whatever amount you withdraw as a salary remuneration, you have to pay upfront tax of 30% plus. You know, 30%, 10 लाख के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा. However, यहाँ पे प्रीमियम आपके नाम पे पे हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे हुई है, बट you don't have to pay any tax. It will not be treated as a perquisite in the hands of a director of L2BI, whomsoever L2BI it may be. So ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है. आज कोई टैक्स नहीं देना है मुझे, इवन दो मेरे नाम पे पॉलिसी है, मेरे लाइफ पे पॉलिसी है रेदर, और कंपनी प्रीमियम भर रही है. मे बी इट्स अ यूलिप प्लान, ट्रेडिशनल प्लान या कोई भी प्लान हो. राइट. जस्ट अ स्मॉल कंफ्यूजन, जो प्रपोजर होता है उसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है एग्जैक्टली या फिर डायरेक्टर का नाम लिखा जाता है? कंपनी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इंडिविजुअल पॉलिसी योगेश के नाम का होगा. हाउएवर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम का होगा. सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हम लोग मेल करेंगे, ईमेल करेंगे या हार्ड कॉपी भी भेजेंगे, उसमें प्रपोजर का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का होगा, कंपनी का होगा, whomsoever it may be कंपनी में भी प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई भी होगा, वो हम लोग देखेंगे कौन प्रपोजर हो सकता है, बट कंपनी का नाम होता है, इसमें एम्प्लॉयर का नाम होता है, नॉट एम्प्लॉय. एम्प्लॉइज का रोल जैसे आप देख रहे हो स्लाइड में, सेकेंड पॉइंट, केवल लाइफ टू बी इंश्योर्ड का है. Proposer owner is a company. So, even I have a question here. Yes. अब जैसे मेरे नाम पे मैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इंश्योरेंस ले सकती हूँ इंडिविजुअल में, ठीक है. सपोज मैं 20 लाख तक का कवर ले सकती हूँ, ठीक है. तो उसमें अब अगर मैंने एम्प्लॉय में मेरी कंपनी ने मेरे लिए इतने 10 लाख की अगर पॉलिसी ली है, तो क्या वो मेरे इंडिविजुअल कवर को इफेक्ट करेगा, या मैं अपने इंडिविजुअल पॉलिसीज में अपनी पूरी ले सकती हूँ एंड दिस इज एडिशनल टू दैट? It is not additional, it will be counted. अगर ऐसा इट होता विल बी तो काउंटेड, बट इसकी प्रोसीड्स तो कंपनी के पास आएंगी, मेरे पास तो नहीं जाएंगी. still it will be counted, क्योंकि एक यहाँ पे क्या होता है ना, लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट है. एक पर्सन के लाइफ पे आप कितना कवर दे सकते हो. यू नो, मैं आज 10 कंपनी में भी काम कर सकता हूँ, और मेरे लाइफ की वैल्यू, एक लाइफ वैल्यू होती है हर एक पर्सन की उसके इनकम के अकॉर्डिंग. सो मेरी लाइफ वैल्यू समझ लो 5 करोड़ की है. ओके, सो मैंने ऑलरेडी 5 करोड़ ले लिया मेरे इंडिविजुअल नाम पे. अब मैं 10 कंपनी में काम करता हूँ, यू नो, तो मैं हर एक 10 कंपनी से 5-5 करोड़ नहीं ले सकता. इट विल बी 50 करोड़ वैल्यू, वो नहीं हो सकता. यू नो, सो टर्म प्लान में यस वी विल कंसीडर, डेफिनेटली ये कंसीडर किया जाता है. इफ इट इज अ हायर कवर, छोटा कवर रहेगा मे बी 1 करोड़ के अंडर, तो नहीं कंसीडर करते. बट इफ यू go for a huge cover under term plan, then yes, employer employee का इवन की मैन इंश्योरेंस का कवर भी कंसीडर किया जाता है. इवन फॉर गिविंग employer employee cover, individual cover is considered. For giving individual cover, employer employee and key man insurance cover is considered. Okay, I hope it is clear to you. इट इज क्लियर, बट लास्ट टाइम जब कीमान का सेशन हुआ था, देन आल्सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो तब तो सर ने यही बोला था कि कीमान उसमें इंडिविजुअल कवर आपका नहीं इफेक्ट होता कीमान में. मिनिमम लेवल पे नहीं होगा. However, if you go for a higher cover, then yes, definitely वो अफेक्ट होगा. राइट. अगर आप छोटे कवर के लिए जा रहे हो, यू नो, मे बी 1 करोड़ 2 करोड़ तक का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट अगर आप हायर कवर के लिए जाओगे और ऑलरेडी आप ओवर इंश्योर्ड हो, तो आपको नहीं मिलेगा. ये बात भी लास्ट टाइम हुई थी, आई रिमेम्बर. राइट. ओके. आप लॉजिकली सोचो ना, इफ यू आर अ एम्प्लॉय इन 10 कंपनीज, तो आप कैसे ले सकते हो ये अपने ही नाम पे? ऐसे तो हर एक आदमी आपके नाम पे, मैं यू नो आई कैन ज्वाइन 50 कंपनी और मैं अपने नाम पे यू नो 500 करोड़ का कवर भी ले सकता हूँ, इफ दिस इज पॉसिबल. यू नो, क्या ये लॉजिकल लगता है आपको? होगा नहीं होगा ना. दे विल, अंडरराइटर विल कंसीडर एट सर्टेन लेवल, या बट छोटे लेवल पे नहीं करेंगे. मे बी अब वो क्या लेवल होगा, दैट अंडरराइटर विल हैव टू डिसाइड. बट डोंट गो मच इनटू दैट, दैट इज अंडरराइटिंग कंसेप्ट. यू नो, हम उसको डीप में हमें नहीं जाना है उसमें. ओके. या थैंक यू. Darshan sir, I would like to ask something here. या Darshan sir, let's say for an example,
I'm an employee of the organization और मेरे ऑर्गेनाइजेशन से डिस्प्यूट हुए और मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन को मे बी 2 साल में या 3 साल में छोड़ दिया, तो क्या मेरा इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा या फिर इंश्योरेंस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा? I will answer this question. इसके ऊपर we have a slide, you know. So Okay. first understand हम किसको दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके अच्छा। बाद बंद करने की बात पे आएंगे. You to note down your question. एक स्लाइड है तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप पूछ लेना बाद में क्वेश्चन आंसर में. Definitely I will answer. So मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज we will miss out in a flow. I have invited LPC also. 3 बजे उसका टाइम है. So I just cover few basic things. Then I will take your questions. So tax implication मैं बता रहा था, प्रीमियम परक्यूजिट में नहीं आता. That is the biggest advantage. And इसकी मैच्योरिटी जो आएगी, you know, whatever maturity that will come is a income. इसकी मैच्योरिटी जो भी आएगी वो कंपनी के लिए इनकम होगी. अगर इंडिविजुअल को आती है तो उसके लिए वो इंडिविजुअल इनकम होगी. So maturity of employer-employee policy is a income. However, premium paid is a expenditure. इसके ऊपर भी एक स्लाइड है टैक्सेशन के ऊपर डिटेल्ड में. सो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली टैक्स इम्प्लीकेशन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट, वो सारा हम लोग बाद में देख लेंगे. फर्स्ट बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं. हु कैन टेक दिस पॉलिसी, बिकॉज इट इज गिवन टू बिजनेस एंटिटी. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द बिजनेस एंटिटीज और उनको हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, कौन से बिजनेस एंटिटी में किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते. सो यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे. हु कैन बी प्रपोजर एंड हु कैन बी L2BI. राइट. कोई भी पॉलिसी जब ये आपको एजेंट पूछेगा कि ये पॉलिसी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किसको बेच सकता हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रपोजर कौन हो सकता है और L2BI कौन हो सकता है. इंडिविजुअल तो आपको मालूम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल को ही जाती है, बट यहाँ पे प्रपोजर कुड बी any form of business organization. It may be a private limited company, it may be a public limited company, partnership firm, LLP, proprietorship firm, trust, society. So आपको ये समझना चाहिए कि कौन से प्रपोजर में कौन L2BI हो सकता है. So इसके बारे में बताऊंगा. और सेकेंड चीज, लाइफ टू बी इंश्योर्ड कौन होना चाहिए. दैट इज वेरी सिंपल. लाइफ टू बी इंश्योर्ड एम्प्लॉय होना चाहिए. So वो हम डिस्कस करेंगे. So first, who can buy, who can source, rather who can be a proposer of this policy. सो यहाँ पे आप देखो, प्रपोजर कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिसको हम बोलते हैं, या ट्रस्ट या सोसाइटी. ये सारे बिजनेस एंटिटी प्रपोजर बन सकते हैं. दर्शन सर, इसका भी क्या सेम क्लॉज ही रहता है कीमैन जैसा कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एंड सेकेंडली हम एनजीओज को नहीं देते? यस अंडरराइटिंग के ऊपर मैं आऊंगा. यस, आपको आएंगे क्वेश्चन. जैसे दिनेश ने बताया, इट इज ह्यूज. उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, यू नो, बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट के बाद हु कैन बी प्रपोजर, हु कैन L2BI वो देख रहे हैं. अंडरराइटिंग का एक स्लाइड है मेरे पास, उसको मैं कवर कर लूंगा थोड़ी देर बाद. सो फर्स्ट सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किन किन ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं. अंडरराइटिंग का मैं ब्रीफ में एक रूल ये बताऊंगा कि यस, ओनली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वी कैन गिव. लॉस मेकिंग रहेगा तो हम नहीं दे पाएंगे. या एग्जैक्ट अंडरराइटिंग क्या होगी उसके ऊपर आगे स्लाइड है. सो ये आप देखो, मोस्टली जो प्रपोजर होते हैं वो आप बनाते हो. प्रपोजर जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म. इन 3 में से ही मोस्टली ज्यादा हम पॉलिसी बेचते हैं. उसमें से भी ज्यादा करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही आती है. आई वुड से 60-70% बिजनेस हमारा यू नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, मे बी मोर देन दैट, यू नो. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम ज्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी देते हैं. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको ये समझना जरूरी है कि कौन लाइफ टू बी इंश्योर्ड होता है इफ प्रपोजर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. आई पुट इट इन अ डिफरेंट वे. लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ.
Archana, you are going for a call, you know, with a advisor, maybe it's a Zoom call. So आप कंपनी में जाते हो, you know, practical example लेते हैं कि आप you go on a field, you visit a company, you visit a prospect rather, और वहां जाके आपको पता चलता है अर्चना कि it is a private limited company, you know, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, you know, XYZ private limited. So आपको ये अब पता लगाना है कि प्राइवेट लिमिटेड में आप किसको दे सकते हैं, क्योंकि हर एक एंटिटी के लिए रूल थोड़े थोड़े अलग है. सो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, यू नो. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं. हाउएवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, यू नो. सो डायरेक्टर के नाम पे आप पॉलिसी दे सकते हो, बिकॉज डायरेक्टर आर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. सो डायरेक्टर जो होते हैं उनके नाम पे पॉलिसी दे सकते हो, या फिर जो अदर एम्प्लॉइज है जो सैलरी ड्रॉ करते हैं, जो बैंक से सैलरी लेते हैं, नॉट ऑन कैश, अब अदर देन कैश मोड जो सैलरी लेते हैं, उनके नाम पे आप पॉलिसी दे सकते हो. सो इट्स सिंपल. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर, मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी डायरेक्टर, और अदर एम्प्लॉइज हु आर ड्रॉइंग सैलरी, दे कैन बी गिवन अ पॉलिसी. अगर अर्चना सेम केस, अगर आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेम रूल होगा, आप डायरेक्टर को दे सकते हो, एम्प्लॉइज को दे सकते हो. अगर वो प्रोस्पेक्ट पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर नहीं होते, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं. सो देयर आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. सो अब यहाँ पे एक रूल आ जाता है, इन पार्टनरशिप फर्म वी कैनॉट इंश्योर पार्टनर्स अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस. सो यहाँ पर हम पार्टनर्स के नाम पे पॉलिसी नहीं दे सकते, because partners are not employees of the partnership firm. There are the partners or owners of the company or firm, right? तो इसलिए पार्टनर के नाम पे हम नहीं दे सकते. बट पार्टनरशिप फर्म में जो एम्प्लॉइज है, मे बी पार्टनर वाइफ जो कि पार्टनर नहीं है बट शी इज ड्रॉइंग अ सैलरी, ऑन हर लाइफ वी कैन गिव. कोई और एम्प्लॉइज है उनके नाम पे हम दे सकते हैं. सो पार्टनरशिप फर्म में याद रखना है, पार्टनर के नाम पे हम नहीं दे सकते. LLP अगर है, इफ यू गो विजिट द प्रोस्पेक्ट एंड इट हैपन टू बी अ LLP, आपको पता चलता है इट इज अ LLP, XYZ LLP, आपको बोर्ड दिखता है, देन आपको समझना है कि इसमें आप जब जाओगे, सो LLP का अगेन जो पार्टनर होगा उसको ना, उसके नाम पे उसकी लाइफ टू बी इंश्योर्ड आप नहीं कर सकते, उसको आप लाइफ टू बी इंश्योर्ड नहीं रख सकते. LLP हो या पार्टनरशिप फर्म हो, इन दोनों के पार्टनर होते हैं इन दोनों में, और उन पार्टनर को हम लाइफ टू बी इंश्योर्ड नहीं बना सकते. बट अदर एम्प्लॉय जो होंगे उनको हम पॉलिसी दे सकते हैं, उनको हम लाइफ टू बी इंश्योर्ड बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, अगर प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, एक मिनट, ये LLP का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इट इज अ new version of a partnership firm, extension of partnership, I would say, you know, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. या जो 2008 में ये एक्ट पास हुआ, LLP एक्ट 2008, यू नो. सो लिमिटेड लायबिलिटी, इसका पर्पस ये था कि पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी होती है ना पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है. सो बट यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसको गवर्न जो करता है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी करता है. सो इट इज अ डिफरेंट रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर LLP. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको गवर्न करता है. हाउएवर पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932. LLP इज गवर्न बाय LLP एक्ट 2008. तो ये दोनों में डिफरेंस है. अदरवाइज इनकम टैक्स के नजर में दोनों सेम है, हमारे नजर में दोनों सेम है. गवर्निंग अथॉरिटी दोनों की अलग अलग है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट हमारे लिए पार्टनर हो या LLP हो, हम पार्टनर के नाम पे नहीं दे सकते. नेक्स्ट, अर्चना, आई एम कंटिन्यूइंग विद दी सिमिलर एग्जांपल. कॉल पे जा रहे हो एजेंट एडवाइजर के साथ, और आपको बोर्ड दिखता है, यू नो, XYZ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. सो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पे एक स्टाफ बैठा रहता है, उसको पूछते हो ये कंपनी XYZ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, या क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ये क्या ये LLP है, क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. सो वो जो एम्प्लॉय है वो बताता है, नो 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 मैम, इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंपनी. देन अभी आपको ये सोचना है कि सोल ट्रेडिंग कंपनी में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में मैं किसको दे सकता हूँ.
ये सोचना आपके लिए जरूरी है. सो प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक प्रोप्राइटर होता है, यू नो, ही इज द ओनर ऑफ दिस, 100% ओनर ऑफ दिस प्रोप्राइटरशिप फर्म. जैसे मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें मैं ओनर रहता हूँ. मैं मेरे नाम की कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता हूँ. दर्शन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड दर्शन इज अ प्रोप्राइटर. सो अर्चना, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाते हो, इफ यू विजिट अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, देन you can give only to the employees of a proprietorship firm and not to the proprietor, because again proprietor is not an employee, he is the owner. यहाँ पे employer employee relationship नहीं meet होता. Same is the case with the partners again employer employee relationship meet नहीं होता. Right? Trust society हम लोग ज्यादा नहीं करते, so I will not talk about that. On the case to case basis we will talk, but trust and society में जो ट्रस्टीज होते हैं, यू नो, या मेंबर्स होते हैं, अगर वो एम्प्लॉय है तो उनके नाम पे हम पॉलिसी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे. ट्रस्ट में ना मेरे पास एक केस आया था, मेरे को ध्यान है, उसके अंदर उन्होंने बेनिफिशियरी के नाम पे ली थी, बट वो केस फिर इशू नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि बेनिफिशियरी तो बिकॉज ही वाज नॉट एन अर्निंग मेंबर, वो अर्न नहीं करता था, तभी उसके नाम पे ट्रस्ट क्रिएट हुआ था. तो इज इट लाइक इन एवरी केस की बेनिफिशियरी के नाम पे वी कैन नॉट गिव इंश्योरेंस? ट्रस्ट आप जो बोल रहे हो ना, वो इंडिविजुअल ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट की बात कर रहे हो. फैमिली ट्रस्ट की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत सारे एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, या यू नो हॉस्पिटल जैसे होते हैं ट्रस्ट के अंदर, या स्कूल्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. लाइक रेड क्रॉस वी कैन से, या बहुत सारे यू नो सोसाइटीज या ट्रस्ट होते हैं जो स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, यू नो, या मंदिर चलाते हैं, यू नो, बहुत सारे वो चैरिटेबल चीजें भी करते हैं. सो उनकी बात कर रहा हूँ. उसमें ट्रस्टीज होते हैं बहुत सारे, यू नो, या मेंबर्स होते हैं. जो आप बात कर रहे हो ना, वो इंडिविजुअल ट्रस्ट. जैसे मैंने एक ट्रस्ट बनाया, फैमिली ट्रस्ट, उसमें मैंने बेनिफिशियरी बताया मेरे वाइफ को या बच्चों को. सो वो ट्रस्ट में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, है ना. फॉर गिविंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वी हैव टू हैव अ बिजनेस. यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, राइट. सो ट्रस्ट के केसेस ज्यादा नहीं आते हैं, सो डोंट गो मच इनटू दैट. प्रैक्टिकली ज्यादा केसेस आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, सो अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट. बट इन केस आपको कोई डाउट है, प्लीज गेट इन टच विद मी. अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ट्रस्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सो आई विल नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट द ट्रस्ट. हम लोग बेसिक्स जो है मैक्सिमम जहाँ पे केसेस होते हैं उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे. ओके, सो आई एम मूविंग अहेड. या तो अर्चना, आपके ऊपर मैं बता रहा था, यू नो, आप विजिट करते हो डिफरेंट एंटिटीज में, सो आपको पता होना चाहिए किस किस एंटिटी में आप क्या क्या दे सकते हो. अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, पब्लिक कंपनी में जाते हो, तो डायरेक्टर या एम्प्लॉयज के नाम पे पॉलिसी दे सकते हो. पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में जाते हो तो पार्टनर छोड़ के जो भी एम्प्लॉयज है उनको नाम पे दे सकते हो. अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाते हो तो प्रोप्राइटर छोड़ के जो भी एम्प्लॉयज है उनके नाम पे पॉलिसी दे सकते हो. यहाँ पे एम्प्लॉय कौन होना चाहिए? नेक्स्ट पैराग्राफ. एम्प्लॉय वो होना चाहिए जो सैलरी ड्रॉ करता है बैंक से. कैश में सैलरी अलाउड नहीं है. एक मुझे कल ही फोन आया था, वहां पे एम्प्लॉयज है, सारे कैश में सैलरी लेते हैं, 15 एम्प्लॉय है. वो मुझे पूछ रहे थे दे सकते हैं क्या. आई सेड नो. पुणे से कल मुझे कॉल आया था, मैंने उनको बताया आप इंडिविजुअल दे दो, उनके इंडिविजुअल बेसिस पे, कंपनी से नहीं दे पाओगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगी. सो सैलरी जो है वो कैश में नहीं होना चाहिए, बैंक में आना चाहिए. और डॉक्यूमेंट उस प्रूव करने के लिए वी शुड हैव अ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आईटीआर. इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हो, सो ये प्रूव हो जाएगा कि वो एम्प्लॉय है. सो ये दो पार्ट आपको समझने बहुत जरूरी थे. हु कैन बाय. सो आई थिंक आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस देख के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अभी आपको पता चला होगा कि यही आपके प्रोस्पेक्ट हो गए. देखो, आप जब एजेंट को बताओगे आपके कि आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की P10 की लिस्ट बनाओ, तभी आपको यही बताना है कि आप, अगर एजेंट ने बताया कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये है, तो आपको ये पता लगाना है पहले कि ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है. अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको बताना है इसमें आप डायरेक्टर के नाम पे दे दो. अगर आपको पता चला वो एक पार्टनरशिप फर्म है तो आप ये मत बताना कि पार्टनर के नाम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दो, वो नहीं जाएगा.
सो यू शुड नो दिस, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। सो आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ इसके ऊपर। इसके बाद ये एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, CBDT सर्कुलर 762 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रीमियम पेड ऑन अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। जो 37(1) में हम बोलते हैं इसको प्रीमियम का खर्चा मिलता है, यू नो। सो इसका प्रूफ क्या है? सो दिस इज द प्रूफ दैट दिस प्रीमियम इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अलाउड है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछेंगे कि की मैन इंश्योरेंस अलाउड है, बट आप तो हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दे रहे हो, ये कैसे अलाउड है, ये कहाँ लिखा है? सो उसके लिए आपको की मैन इंश्योरेंस का डेफिनेशन देखना है। सो इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, whereby it is mentioned that key man insurance policy is a policy taken by one person on life of another person. So key man insurance includes employer employee insurance. So employer employee insurance, key man insurance, both are same for the income tax act. ये आपको क्लियर हो गया या डाउट है इसमें? See this is सर ये कीमैन वाला एक बार रिपीट कर दो प्लीज। या मैं रजनीश, आप एक कॉल पे जा रहे हो, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, आई थिंक ऐसे आपको ज्यादा पता चल जाएगा। सो इफ यू आर गोइंग ऑन अ कॉल, आपने पिच कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर के नाम पे 25 लाख का प्रीमियम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। अब कंपनी का सीए जो है वो क्वेश्चन पूछता है ये प्रीमियम कैसे डिडक्टिबल होगा, क्या प्रूफ है कि कहाँ लिखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है? मैं जो स्टार्टिंग के स्लाइड में बोल रहा था 37(1) में अलाउड है, वो कहाँ लिखा हुआ है? सो वो लिखा हुआ है ये लास्ट स्लाइड में, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो रेड कलर में लिख रहा है, दिख रहा है आपको रजनीश? कैन यू रीड दैट? रेड कलर में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? The premium paid on the Keyman policy is allowed as business expenditure. That's it. That's it. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीमियम पेड इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। हाँ जी। तो की मैन इंश्योरेंस यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड, ये इनकम टैक्स के वेबसाइट में लिखा हुआ है। सो यू एंड मी, मैक्स लाइफ कैनॉट, मैक्स लाइफ इज नॉट सेइंग इट, ये इनकम टैक्स वेबसाइट ही कह रही है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि की मैन इंश्योरेंस वहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, बट आप तो हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी देते हो, तो ये कैसे अलाउड है? सो इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड बताई थी, ये स्लाइड। यहाँ पे की मैन इंश्योरेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। सो डेफिनेशन ऑफ अ की मैन इंश्योरेंस सेज की मैन इंश्योरेंस इंक्लूड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, राइट? सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस, दोनों या कोई भी हो, दोनों में से इट इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। सो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्शन आता है कि ये कहाँ लिखा है कि ये खर्चा है। Right, it's clear now. That's the reason ये शेयर करना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टैक्स डेफरमेंट का होता है। यू नो एम्प्लॉय रिटेंशन ज्यादा करके बल्क एम्प्लॉइज में होता है। यू नो एक्चुअल इसका बेनिफिट है टैक्स रिटेंशन, टैक्स डेफरमेंट, और कंपनी के नाम पे पॉलिसी, कंपनी के पैसों से पॉलिसी आती है फैमिली मेंबर्स के नाम पे। बाकी बेनिफिट यहाँ पे जो लिखे हैं वो यू नो जस्ट हाइपर करके लिखे हुए, मे बी दैट दे मे नॉट एक्चुअली रिलेवेंट। एक्चुअल बेनिफिट प्रैक्टिकली यही होता है कि आप कंपनी से प्रीमियम पे करते हो और डायरेक्टर के नाम पे पॉलिसी आती है, फैमिली मेंबर के नाम पे पॉलिसी आती है, एंड दैट पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो एक्सपेंडिचर मिलता है कंपनी को। इज दिस क्लियर गाइज? रितु, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं टेक्निकल जा रहा हूँ या क्लियर है? Yes, yeah, everything is clear. Okay, so what we learned till now is what is employer employee insurance, इसका पर्पस क्या है, हम किसको दे सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, प्रपोजर कौन हो सकता है, लाइफ टू बी इंश्योर्ड कौन हो सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अब इसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। टैक्स, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ प्रीमियम, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये समझना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्विकली बता देता हूँ प्रीमियम का। आई थिंक आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, मैंने ऑलरेडी बता दिया।
मैंने आपको प्रूफ भी बता दिए, 762 सर्कुलर में लिखा हुआ है, इट इज अलाउएबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो नीचे वाला सेक्शन में। सो ऑल द रिसिप्ट्स इन द हैंड्स ऑफ अ एम्प्लॉयर और कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। सो आकांक्षा, इन योर केस अगर आपके नाम पे पॉलिसी ली हुई है कंपनी ने, और 15 साल बाद 20 साल बाद मैच्योरिटी आती है, और अगर कंपनी ने आपके नाम पे पॉलिसी असाइन नहीं की, या तो पॉलिसी के जो पैसे आएंगे वो किसको आएंगे आकांक्षा? कंपनी को आएंगे। सो कंपनी के लिए वो जो पैसे आएंगे, मे बी आफ्टर 15 years जो पैसे आ गए, मे बी 1 crore rupees आ गए, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस इनकम फॉर द कंपनी। क्लियर? सर एक और चीज, अगर मान लीजिए कंपनी ने एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दी थी पॉलिसी, बट एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, फिर किसको आएगा पैसा? बताऊंगा, इसके बाद वही बताऊंगा, इसके बाद वो है छोड़ने के बाद क्या होगा। वो अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं करी, तो जो आपने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था एम्प्लॉय रिटेंशन, तो वो कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। एम्प्लॉय रिटेंशन क्यों होता है? एम्प्लॉय रिटेंशन इसलिए होता है आकांक्षा कि जैसे मैंने बताया अगेन, एम्प्लॉय रिटेंशन 5% बिजनेस है, तो मैक्सिमम वो पर्पस नहीं होता एम्प्लॉय का। मेन पर्पस होता है डायरेक्टर या किसी एम्प्लॉय के नाम पे, फैमिली मेंबर के नाम पे पॉलिसी लेना। हाउएवर स्टिल इफ यू वांट टू नो, एम्प्लॉय रिटेंशन में क्या होता है ना, जैसे कुछ एम्प्लॉइज है, 5 एम्प्लॉय है कंपनी के, जो कंपनी चाहती है कि वो छोड़ के नहीं जाए, राइट, तो इसीलिए उनके नाम पे पॉलिसी ली जाती है। बट अगेन ट्रस्ट, दैट इज माय पॉइंट। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के नाम पे ट्रांसफर ही नहीं किया गया, तो मतलब उसको बेनिफिट ही नहीं है ना कुछ तो। अरे बट करते हैं ना ट्रांसफर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आकांक्षा, रूल्स ऑफ स्कीम में लिखा होता है, रूल्स ऑफ स्कीम में ये लिखा होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years पॉलिसी विल बी transferred to employee, assigned to employee, or maybe policy benefits will be given to employee. इसका मतलब whatever money will come, that will be given to a employee. दर्शन में अगर आप मुझे अलाउ करो फॉर अ मिनट, आकांक्षा क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो हम हमारे एम्प्लॉयज को फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहोगे देन यू विल गेट दिस, लाइक जैसे ग्रेचुइटी होता है पार्ट। समझ में आ गई योगेश, बट मेरा बस ये, अब सुनो पहले सुनो। एम्प्लॉय रिटेंशन का मीनिंग क्या हुआ कि वो एम्प्लॉय हमारे साथ बना रहे। इफ वी ट्रांसफर दैट पॉलिसी टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तब तो रिटेंशन का पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ ना, उसके बाद तो वो रहे या चला जाए, हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। व्हेन द पॉलिसी इज विद कंपनी एंड द कंपनी लॉज इज सेइंग कि 10 साल के बाद वो आपको ट्रांसफर होगी, देन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू स्टे विद दैट कंपनी फॉर 10 years। लाइक हमारी कंपनी एक एलटी पे एक प्रोग्राम चलाती है, राइट। नए एम्प्लॉयज हमारे लिए वो है नहीं, पुराने एम्प्लॉयज के लिए। उसमें होता क्या है, वो जो होता है जिस साल में अर्न किया है वो उस साल में ना मिलके उसके 2 साल बाद मिलता है उसे, राइट। तो वो उस एलटीप के अमाउंट को लेने के लिए वो कंपनी स्विच नहीं करता, क्योंकि वो उसे 2 साल बाद मिलना है, और ये रोटेशनल बेसिस, वो अगले साल भी कमाएगा तो वो फिर उससे 1 साल बाद और मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से ये रिटेंशन में काम आती है। रिटेंशन इज व्हाट आई एम शोइंग यू परक्विजिट बट इट्स नॉट इन योर हैंड। बच्चे से अगर कोई काम कराना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये काम कर लो चॉकलेट मिल जाएगी। अगर चॉकलेट पहले दे दी तो बच्चा काम करेगा, आई गेट दैट पॉइंट, है ना। ओके, आई थिंक या बिल्कुल सही बताया। देखो आकांक्षा, मेन पर्पस मैं अगेन बता रहा हूँ, 95% बिजनेस या उससे भी ज्यादा बिजनेस हमें आता है, वो पॉलिसी होती है डायरेक्टर के नाम पे। एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए देयर आर मेनी अदर वेज, उसके लिए पॉलिसी नहीं जाती। 5% बिजनेस होता होगा, मे बी सम केसेस माइट कम, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज के नाम पे, बट ये इतना पॉपुलर नहीं है। इसीलिए अगर ये पॉपुलर होता ये रिटेंशन वाला कंसेप्ट, तो उसमें हम ज्यादा बिजनेस लाते ना। तो आप बात ये समझो, प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो एम्प्लॉय रिटेंशन का कंसेप्ट है वो तब वर्क करता है जब मैं बताता हूँ कि अगर एम्प्लॉय 10 साल काम करेगा तो इसकी मैच्योरिटी जो भी आएगी 10 साल बाद या 15 साल बाद, वो सारी एम्प्लॉय को ट्रांसफर की जाएगी।
इसका मतलब पॉलिसी जो है वो कंपनी के नाम पे ही रहती है, however at the time of maturity as per the agreement between the company and employee जो भी प्रोसीड्स होंगे वो एम्प्लॉय के नाम पे बाद में ट्रांसफर किए जाते हैं। सो ऐसी अरेंजमेंट इसमें होती है। अब क्विकली हम दर्शन सर, Yeah. क्या ये असाइनेबल है? जैसे कोई Yes. बैंक से लोन ले लेता है एंड देन असाइनमेंट, असाइनमेंट एक इसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है। असाइनमेंट इज सच अ यू नो क्रिटिकल एंड टिपिकल कंसेप्ट इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, so I'm not going to talk that in at this level. Maybe we can have a third session for employer employee if time permits at later. But assignment के ऊपर एक सेशन हो सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। So first understand the basic things. हमने बेसिक समझा अभी तक, यू नो, और प्रैक्टिकल चीज के लिए समझा है। मैंने इसीलिए स्टार्ट में बताया था 5% बिजनेस जो नहीं होता उसके ऊपर मत सोचो, मुझे क्वेश्चन इसमें पूछो जो बिजनेस हम करते हैं, डायरेक्टर के नाम पे करते हैं, फैमिली मेंबर के नाम पे करते हैं। रिटेंशन के ऊपर एडवाइजर पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए आई थॉट एक बार आपसे क्लैरिफिकेशन हो जाता तो ठीक। नो प्रॉब्लम, वो 1-to-1 में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डन। या सो इसके टैक्स के प्रोसीड समझ लो, व्हाट वुड बी दी यू नो टैक्स implication. Whatever receipts that will come to company after maturity, maybe after death, partial withdrawal, surrender, will be treated as a business income. So जो भी पैसा आएगा in its entire amount will be treated as a business income. Maybe 1 करोड़ का मैच्योरिटी आया तो पूरा 1 करोड़ जो होगा वो बिजनेस इनकम काउंट होगा। Whatever maturity, entire amount will be taxable. प्रीमियम पेड का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता। प्रीमियम पे मैंने किया है 5 साल में, समझ लो 60 लाख रुपीज, यू नो 12 लाख, 12 lakhs into 5, 60 लाख रुपीज, मैच्योरिटी आ गया 1 करोड़। तो यहाँ पे 1 करोड़ माइनस 60, 40 टैक्सेबल नहीं होगा अवनी, एंटायर 1 करोड़ इज टैक्सेबल बिकॉज यू टुक अ बेनिफिट ऑफ 60 lakh at that as a expenditure at the time of premium. तो ये आपको बात समझनी है। That is why we call it as a tax deferment tool and not tax saving tool. Right. Okay, yeah. Receipts in the hands of an employee will be treated as profit in lieu of salary. So इस पॉलिसी का रिसिप्ट अगर एम्प्लॉय को दिया, पॉलिसी का मतलब वो एज गुड एज वो सैलरी हो गया। इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट, इसके टेक्निकल वर्ड पे मत जाओ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसका मतलब हो गया सिंपली सैलरी। जैसे मेरे कंपनी एबीसी कंपनी ने 10 साल बाद एमबीसी कंपनी को मैच्योरिटी मिल गई, यू नो, और योगेश को मैच्योरिटी उसने ट्रांसफर कर दी एज पर द रूल्स ऑफ स्कीम। योगेश ने 5 साल कंप्लीट किए थे, तो वो मैच्योरिटी जो है वो कंपनी ने, एबीसी ने योगेश को ट्रांसफर कर दी, तो योगेश के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। इन केस ऑफ अ डेथ, जैसे मैंने की मैन इंश्योरेंस में लास्ट टाइम बताया था सेशन में, एक्स ग्रेशिया हम दे सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स ग्रेशिया हम एट द इवेंट ऑफ अ डेथ सेम फिनेंशियल ईयर में फैमिली मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टर के या फैमिली यू नो एम्प्लॉइज के, उनके नाम पे हम दे सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन फैमिली मेंबर्स के हाथ में जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री होगा। आई थिंक एक्स ग्रेशिया मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिटेल में समझाया था, सो आई थिंक इट मस्ट बी इन योर माइंड, आपको क्लियर होगा। ये सिंपल है। इन द इवेंट ऑफ डेथ व्हाटएवर मनी कम्स आपको पास ऑन करना है एज एक्स ग्रेशिया, अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स और विडो, उनके हाथ में वो टैक्स फ्री हो जाएगा। दैट्स इट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्विकली। वी विल हैव आवर यू नो स्पेशल गेस्ट also. She will be coming at 3:15, so I just have 10 minutes left, maybe not less than 10. एक क्वेश्चन रह गया था जो मुझे स्टार्ट में पूछा था किसी ने कि एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो क्या होता है, you know, ये बहुत जरूरी है बताना। सो देयर आर 3 ways, 3 चीजें हो सकती है एम्प्लॉय छोड़ने के बाद। 3 चीजें क्या हो सकती है? फर्स्ट, एम्प्लॉय छोड़ने के बाद कंपनी कैन assign that policy to the employee. First thing, policy assign हो गई एम्प्लॉय के नाम पे। अगेन आई टेक एग्जांपल ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। योगेश, अगर योगेश हैज लेफ्ट द कंपनी आफ्टर 6th year, so योगेश एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन असाइन policy in your name, and after assignment you will be owner of that policy. You will pay the rest of the premiums if premium payment term is not over. If premium payment term is over,
whatever the maturity will come, Yogesh, you will receive the maturity. Okay. And I have to pay the taxes as well. Yes, you have to pay the taxes. It is not exempt under 1010D because originally it is employer-employee policy. Right. So ये एक चीज हो सकती है कि आप एम्प्लॉय के नाम पे दे दो. अब सेकेंड चीज ये भी होती है, कोई एम्प्लॉय जो होते हैं बदमाशी करते हैं, एक ही साल में छोड़ के जाते हैं, तो उसके नाम पे क्यों दे हम? अगर कंपनी ने अच्छा सोच के लिया है एम्प्लॉय के नाम पे और वो एक साल में ही छोड़ के जाता है, so company doesn't want to give to that employee. Why should company give to that employee? So company can continue the policy, company can pay the premium even though employee is not there, employee left हो गया. Same example, Yogesh, sorry to say that, but आप कंपनी एक साल में छोड़ के जाते हो, you are not loyal to the company, then still ABC Private Limited can pay premium on your behalf. आप लाइफ टू बी इंश्योर्ड नहीं भी हो, आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर भी पॉलिसी कैन बी कंटिन्यूड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एंड मे बी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म एट द 10th year 15th year जो भी होगा, उस वक्त कंपनी को पैसा मिल जाएगा. कंपनी कैन रिटेन दैट मनी विथ इटसेल्फ और डू व्हाटएवर कंपनी वांट्स टू डू विद दैट फर्म. कंपनी इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी. यहाँ पे ये रूल आपको याद रखना है. थर्ड चीज और एक हो सकती है जो कि प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं देखी, बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है. थ्योरेटिकली हो सकती है कि एबीसी लिमिटेड कैन असाइन दैट पॉलिसी टू न्यू एम्प्लॉयर जहां पे योगेश छोड़ के चला गया है. सपोज योगेश आपने एबीसी लिमिटेड छोड़ के पीक्यूआर लिमिटेड ज्वाइन कर लिया, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड. So ABC Limited can assign that policy to PQR Private Limited, provided दोनों एग्री हो जाए. PQR भी एग्री होना चाहिए, ABC एग्री होना चाहिए. तो प्रैक्टिकली मैंने आज तक कोई ऐसा केस देखा नहीं, बट थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ है, सो आई शुड एक्सप्लेन टू यू. सो तीन चीजें हमने देखी एम्प्लॉय छोड़ने के बाद. एक तो एम्प्लॉय को असाइन कर दो, या फिर पॉलिसी कंटिन्यू कर दो, या फिर पॉलिसी जो है वो आप नए एम्प्लॉयर को दे दो, या चौथा ऑप्शन और भी है, पॉलिसी सरेंडर कर दो, सिंपली बंद कर दो, और जो भी पैसा आएगा वो आपको रखो या एम्प्लॉय को दे दो, जो भी आप डिसाइड. बट हम न्यू एम्प्लॉय को नहीं दे सकते, राइट? क्यों दे भी सकते हैं. सरेंडर करने के बाद कंपनी का पैसा है, कंपनी कैन डिसाइड दैट. मैक्स लाइफ कैन नॉट डिसाइड. ओके. ABC Limited will decide whether to keep it with ABC Limited or to give to Yogesh. तो पॉलिसी वोंट बी ट्रांसफर्ड ना सर, वो तो पॉलिसी सरेंडर होगी और फिर नई पॉलिसी हम नए एम्प्लॉय के नाम पे लेंगे. ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. ट्रांसफर का ऑप्शन एक मिनट ट्रांसफर का ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी बताया ना, असाइनमेंट का फर्स्ट ऑप्शन. नहीं सर, वो नहीं, जैसा कि जो रजनीश ने पूछा ना कि नए एम्प्लॉय को तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है. नए एम्प्लॉय को नहीं हो सकता, लाइफ टू बी इंश्योर्ड अलग है ना. वो सरेंडर होने के बाद नए एम्प्लॉय के नाम पे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ये ट्रांसफरेबल नहीं. ट्रांसफरेबल नहीं होगी. लाइफ टू बी इंश्योर्ड अलग होता है तो उसकी अंडरराइटिंग अलग होती है, तो इट इज ऑलवेज नॉन ट्रांसफरेबल. लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज नॉन ट्रांसफरेबल. एक लाइफ टू बी इंश्योर्ड से दूसरे लाइफ टू बी इंश्योर्ड ट्रांसफर नहीं हो सकती. हाँ, प्रपोजर कैन बी चेंज्ड, बट लाइफ टू इंश्योर्ड कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो मे बी वो स्मोकर होगा, नॉन स्मोकर होगा, एज कम ज्यादा होगी, वी नेवर नो. सो दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. सो ये तीन चीजें आई थिंक इंपॉर्टेंट है. चार चीजें इनफैक्ट, असाइनमेंट करो, कंटिन्यू करो, असाइन टू न्यू कंपनी, और सिंपली सरेंडर द पॉलिसी. तो ये चार चीजें हो सकती है एट द टाइम ऑफ व्हेन एम्प्लॉय लीव्स. बट अगेन प्रैक्टिकली ये कभी नहीं होता. एक डायरेक्टर या अपने नाम पे पॉलिसी लेता है, वो क्यों छोड़ के जाएगा? पर्पस यहाँ पे हम जो 95% केसेस पॉलिसी बेचते हैं वो डायरेक्टर या फैमिली मेंबर को बेचते हैं, वो क्यों छोड़ के जाएंगे? 5% केसेस में जो हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बेचते हैं तब ये हो सकता है. सो इसके बाद नेक्स्ट चीजें है वो है सर मेरे को एक चीज पूछनी थी यहाँ पे. क्या पूछिए? हाँ जी, जो आपने सेकेंड ऑप्शन बोला जिसमें आपने ये बोला कि एम्प्लॉयर विल कंटिन्यू द पॉलिसी एंड जब मेच्योरिटी होगी वो एम्प्लॉयर अपने पास रख लेगा, रिटेन दैट पर्टिकुलर मनी. करेक्ट. जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि जब जो अगर वो वाले मेच्योरिटी अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो एम्प्लॉय हैज टू पे टैक्स ऑन दैट, राइट? तो जब वो मेच्योरिटी कंपनी को मिल रही है तो उसमें एम्प्लॉयर भी टैक्स पे करेगा या फिर नहीं पे करेगा? बिल्कुल करेगा ना. देखो लास्ट लाइन पे देखो, वापिस जाता हूँ मैं. यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट में सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पढ़ो आप, क्या लिखा है?
all received in the hands of employer will be treated as a business income under section 28. मिल गया आंसर? Yes, sir. This is the answer. So whatever money that will come to company, not only at the time of maturity, even at the time of a death, at the time of surrender, partial withdrawal, पैसा हमेशा किसको आएगा? कंपनी को आएगा. Company को You know, आएगा. unless policy is assigned, कंपनी को ही पैसा आएगा. तो कंपनी को जो पैसा आएगा is always taxable. Okay, got it. Right? Yeah. Sir, उसके बाद, I just have a question, if you allow me. yeah, please. So, as you said, sir, let's suppose if a company has taken a policy and the employee leaves the company after 3 years, for example, Hmm. the company decides to continue with the policy. So, Okay. life to be assured is the same person who has left me. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. Now, if let's suppose who has left the company, Pratik, we are not able Am I to hear audible? you properly. Voice is cracking. थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा बीच बीच में. या आप पूछ, Can you देखो hear- मैं बताता हूँ. आपने पूछा, is it still breaking? नहीं अभी बेटर है. Can you- कंटिन्यू करो. Sure. So I was just asking, ki let's suppose if the person dies after leaving the company and the company is still paying the premium for the policy. So now will the company still has the option to pay the money as ex gratia to his family, or will the company get the money when the technically the person dies? जिस पे दो की लाइफ तो भी शॉर्ट है. सो Right. फर्स्ट थिंग, इसके दो आंसर होंगे, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव और एक होगा थियोरेटिकल. सो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं सबसे पहले, तो ऐसे केसेस होना रेयर टू रेयर है, यू नो, क्योंकि मोस्टली हम पॉलिसी किनको देते हैं, डायरेक्टर या फैमिली मेंबर को. तो वो छोड़ के जाने का क्वेश्चन ही नहीं आता, सबसे पहली बात तो. ठीक है, राइट. और छोड़ के भी गए, यू नो, तो वो वापस कंपनी पास क्यों आएंगे डेथ होने के बाद बताने को? हु विल कम? तो प्रैक्टिकली अगर डेथ भी हो जाती है ना, तो भी पॉलिसी होल्डर को या कंपनी को पता नहीं चलेगा. सो कंपनी And सिंपली policy will मैच्योरिटी, still- पॉलिसी विल कंटिन्यू ना, किसको पता चलेगा? पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो अच्छा. कंपनी को आ जाएगा. Okay. प्रैक्टिकली ऐसा होगा. लेकिन अगर कंपनी को पता चल जाता है, या एम्प्लॉय की वाइफ या कोई भी बता देता है कंपनी को, विच इज Right. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो कंपनी का पार्टी नहीं है, तो क्यों बताएंगे कंपनी को, है ना? और मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे केसेस में पॉलिसी कंटिन्यू कंपनी नहीं करती है. मोस्टली पॉलिसी कंपनी सरेंडर करती है, यू नो. फिर भी अगर कंटिन्यू करती है और पता चलता है, सो डेथ सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है उस एम्प्लॉय का, देन कंपनी इज एबल टू गेट अ डेथ क्लेम. इस केस में कंपनी को डेथ क्लेम मिल सकता है. And then company can also pay that claim to employee's family as well. नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि सकते. But क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते. क्योंकि वो उस टाइम पे वो एम्प्लॉय नहीं है ना. एक्स ग्रेशिया पेमेंट हम किसको कर सकते हैं? थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी. Sir, it will be into the Employees books को of company itself. या तो एक एम्प्लॉय को ही कर सकते हैं ना एक्स ग्रेशिया पेमेंट. एक्स ग्रेशिया पेमेंट कैन नॉट बी डन टू एनी थर्ड पर्सन हु मे बी एक्स एम्प्लॉय. सो इसीलिए वो नहीं होगा. सो रेयर केस है, ऐसा क्वेश्चन रेयर केस में आएगा. ओके, क्विकली हम देख लेते हैं बिफोर Right. यू नो दी LPC विल कम. उसके बाद अगर मैं टाइम मिला, इफ शी विल एक्सप्लेन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, सो अगर क्वेश्चन टाइम मिला तो आई विल टेक द क्वेश्चंस. But let me finish this documentation part. I will not explain in detail, but आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है. I will email the document list to you. So यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको MAP में करना होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का. You should log in the case in MAP if it is a product apart except SMTP. Smart term plan is not in. So if it is any traditional product, you know, other than SMTP, term product other than SMTP, तो आप MAP में इसको लॉगिन कर सकते हो. M-Pro में आप नहीं कर सकते. M-Pro is not well versed with the employer-employee policy. उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप फिजिकली मंगा सकते हो, यू नो, स्कैन कॉपी ईमेल पे मंगा सकते हो, या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मंगा सकते हो, जो कि हम लॉकडाउन में स्पेशली एक्सेप्ट कर रहे थे ऑन ईमेल आईडी, जहाँ पे
प्रिंट साइन स्टैम्प पॉसिबल नहीं था। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं उसकी चेकलिस्ट मैं आपको बताऊंगा। एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वी हैव financial documents means सैलरी स्लिप, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट उसको एम्प्लॉय के लगेंगे। सो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड financial documents and KYC documents and statutory documents of a company. So this is the checklist. Whatever is the business entity, उसके हर एक एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। Registration documents are different for different entity. If it is a company, it is a memorandum of association, certificate of incorporation. If it is a partnership firm, it is a partnership firm deed. If it is a LLP, then LLP deed. KYC document में PAN card is compulsory. Financial documents always same, balance sheet, profit and loss account, irrespective of a type of organization. उसके अलावा मैक्स लाइफ के भी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, लाइक रूल्स ऑफ स्कीम, बोर्ड रिजोल्यूशन, KYC disclosure. उसके फॉर्मेट्स है, I will share that on email, so I will not discuss more on that for a want of a time. I will share this list along with the list of documents required. So last part, before I hand over to Nehal, who is our special guest, and I think she has joined this call. Nehal, you are there on this call? Hi Nehal. Yes, I'm there. I'm there, Darshan. Hi Nehal, Hi. I welcome you on this call. This is the group of sales tax managers, and we are taking employer-employee insurance. So I'm just Nehal finishing the last slide of my today's session. Then I will hand over to you for the FHI and to explain about the practical aspect of employer-employee insurance, because I have seen many cases are done, in Ahmedabad region. So Nehal is a LPC for the Ahmedabad region. So she takes care of Ahmedabad patch as a LPC, and she has actually, by herself closed many of the employer-employee cases. I also visited Ahmedabad last year, before last year, and we have also went on a sales call to close these cases. So last thing I discuss on this slide about underwriting. So underwriting is very important. So निखिल, अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो निखिल, और आपको क्लाइंट पूछता है कि आप कितना प्रीमियम में दे सकता हो, आप बताओ. So you should know कि आप कितना प्रीमियम दे सकते हो. You just cannot simply say मैं अंडरराइटर से चेक करता हूँ. So simple rule यहाँ पे है. Mostly we give ट्रेडिशनल एंड यूलिप प्लान अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. सो निखिल, अगर आप ट्रेडिशनल या यूलिप प्लान देते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, सो आपको थंब रूल पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितना होगा, वॉट एवर इज द मैक्सिमम प्रीमियम. द थंब रूल इज द फर्स्ट लाइन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 100% ऑफ एनुअल सैलरी. बस ये एक ही इंपॉर्टेंट रूल है अंडर राइटिंग में. ये एक रूल आप याद रखो, अंडर राइटिंग इज डन. 100% of annual salary is the annual premium in case of a traditional or a ULIP plan under employer employee. So निखिल, अगर आप एक कंपनी में जाते हो और आप वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, and the director is drawing a salary of let's say 12 lakh rupees per annum. So director आपको पूछता है कि whatever is the maximum premium I can take. So your answer should be, sir, as your annual salary is 12 lakhs rupees per annum, so maximum you can pay up to 12 lakh rupees. Maximum I am saying. So this is the basic underwriting. Term plan के लिए we have individual, multiplier we apply. Unlike Keyman where 5 times of companies net profit लगता है, individual employer employee के लिए individual multiplier लगता है. तो as per age, जो भी हमारा multiplier है up to 35, age 25 times, then more than 50 10 times, वो multiplier लगेगा. So that's about underwriting. इसके बारे में just a question I will take question later part because I have to hand over to Nehal, Sure. for FHI. Surely आप chat में question पूछ लो या मुझे message कर दो, I will answer your question. So let's give the session to Nehal. Nehal, again I welcome you. So I just want in next
10 minutes, maybe 10-15 minutes on a practical aspect of employer-employee. I just explain them basics of employer-employee. So you just explain, how employer-employee practically works. Over to you, Nehal. Thank you very much. Sure. Thank you, Darshan. And yeah, welcome. Thank you for such a warm welcome, everyone. And feeling so glad to be with all of you because we all are working in the, same agent group. And it is very important for all of us to know what we are pitching and guiding our agents to do the business. Basically, we are enablers, and our knowledge, matters a lot. It creates our repo, and definitely closing one big check to a agent will make you a star in the sight of the entire group. So when I have entered, in this. Employment, I was not so hands-on with employer-employee. But coming to the LPC role, it was required for me to, be 10 on 10 on employer-employee. And I have studied myself, and I have, implemented all my studies into the practicality on field. So basically, friends, employer employee important इसलिए है because the majority of the top producers premiums comes from business insurance, and nowadays it is a requirement to get big cases closed, and that is why we should know what is the opportunity, how we should pitch, how to prospect BI, and what all requirements. So requirement basic knowledge is Darshan is taking care of, but as far as the practicality is concerned, I just would like to reiterate over here is, sitting in front of customer, there is no prescribed speech, first of all, because every case is specific, and the our presentation depends upon the questions asked by customer. So first of all, I start the call this way. So I take a paper and write a name of that particular firm, for example XYZ. So I asked to the customer whether Mr. Darshan, what is the name of your firm? So Darshan says it's XYZ. So I write it XYZ private limited or public limited, the forum of that firm. Then I make the T of that particular firm. So any firm has two major concerns. कोई भी बिजनेसमैन के दो बड़े कंसर्न होते हैं. नंबर वन, कीप द बिजनेस ऑन गोइंग, बिजनेस को चालू रखना, एंड सेकेंड इज द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबल बनाना. ये दो उसके फोकस एरिया होते हैं, हेल्पफुल टू businessmen by making the means of increasing profit by deferment of tax. So यहाँ पे हम बचा के अपने पास रख के अप्रिशिएट करके दूसरा टैक्स हम पे कर रहे हैं. सो इट इज अ टैक्स डेफरमेंट. सो टैक्स बेनिफिट we should never pitch as a primary benefit in business insurance call, right? Though it is huge benefits for businessmen, but if you will use this, you will encounter that उनके पास टैक्स बचाने के बहुत तरीके हैं. They have 36, 38, so many buckets to save tax. So why life insurance? Then we will fall on flat in front of them. We will not have any argument why life insurance is the only way for a businessman to save tax. But employer employees for four purposes. Number one is to make a retirement corpus for the key employee, by saving through small premiums. Number two is creating a corpus for further companies projection. उनका आगे आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेंशन का व्यू है या उनके जो प्लानिंग्स हैं कंपनी के, उसके लिए एक कॉर्पस बनाना. नंबर थ्री इज providing security to the employees, key employees, and number four is tax saving. So these are four main benefits, and हमें इसी के ऊपर बात करनी है. So T draw कर लिया हमने कि भाई दर्शन भाई आपका सबसे पहला कंसर्न है आपके बिजनेस को चालू रखना. Am I right, दर्शन भाई?
So I'm doing a role play with Darshan. Yeah, exactly. या सो दर्शन भाई आपका पहला कंसर्न रहेगा कि कंपनी को चालू रखना, बिजनेस को ऑनगोइंग रखना है, एम आई राइट? Yeah, business continuity is the primary thing. Primary purpose. And the second purpose is the profitability and growth of the firm, राइट? एंड दर्शन भाई अपने प्रॉफिट, अपनी कंपनी को ग्रोथ पे और प्रॉफिट पे लाने के लिए और इसको सही तरीके से चलाने के लिए यू मस्ट हैव बुक्ड अ कैपिटल. Is it so? Have you booked capital to run the company? Yes, I invested, a crores of rupees 10 years back. Yeah. Absolutely. So, Darshan bhai, if you have booked that capital, you utilize some of the money from this capital to buy, to do the production. Basically, आप जो भी चीज produce करते हो, whether it is knowledge or whether it is some physical thing or whether it is providing software solutions, but you produce something and you sell it off and you book profit. Am I right? Exactly. Correct. Exactly. So, what a businessman typically do, friends, कि वो जो कैपिटल प्रोडक्शन में लगाते हैं, पैसे लगाते हैं प्रोडक्शन में, वो पैसे वो 37(1) के अंदर एक्सपेंसेस में उनको डिडक्टेबल के तौर पे क्लेम करते हैं, जिनके ऊपर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, राइट? एंड वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें से वो एक्सपेंसेस माइनस करके नेट टैक्स करते हैं, राइट? सो दर्शन भाई आप भी बिल्कुल ऐसे ही करते होंगे कि आप राइट, सो पीबी में से एक्सपेंसेस को माइनस करके आप नेट टैक्स पे करते हो. सो दर्शन भाई आप जैसे प्रोडक्शन के लिए ये खर्चे को क्लेम बैक कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही दर्शन भाई फॉर यू टू मेंटेन द मैन पावर of your company is equally important. Do you agree with me? Yes, exactly. Manpower are the key, strength of my organization. Yeah. Absolutely. So I am here talking about the top line of the manpower that is in your company. I mean the chief managers, the production head, the departmental heads and directors. So I'm talking about the 1% or probably 0.5% of the important employee of your company. So because of that top line managers and directors, the company is making profit. You are putting your heart and soul and all your expertise to create profit, right? And that is why the company is growing, Darshan bhai. So my question is to you that, Darshan bhai, have you made any arrangement that tomorrow if something happens to you or that 0.5% key employee of your company, then how company will survive? Will company be able to book the same profit? Number one. Number two, do you need to take out some capital, extra capital from your main capital box to maintain the profitability and invest more money and spend more money to cover up losses? And number three, have you created a second pipeline of leaders who can take care of this critical and emergency situation? So Darshan bhai, can yeah, you I think I haven't thought of doing such. We are never thought of touching this, making provision or even planning on this regard. So that is why, Darshan bhai, I am here in front of you and I have some solutions to take care of all three concerns. And here what we are talking about is claiming back that, maintenance of manpower. We will name this solution, this concept as a maintenance of manpower. जहाँ पे हम प्रोडक्शन के लिए पैसे निकाल के उनको मेंटेन करते थे और उसको जैसे हम पीबीटी में से claim back करते थे as expenses in 37(1). Here the maintenance of manpower also can be treated as deductible
यू नो एज अ सेक्शन 37(1), यानी कि मैन पावर मेंटेन करने के लिए और उनके लॉसेस को, मैन पावर ना रहने से उसके लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारे पास जो अरेंजमेंट्स हैं, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज बिजनेस इंश्योरेंस, and this will take care of all the losses which might be incurred due to the non availability or non working of that productive head with your company anymore. So this concept is known business insurance, and the premiums that we paid for these life insurance policies are deductible under section 37(1). ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हमारा सर्क्यूलर 573 बोल रहा है दर्शन भाई, दैट वी कैन डू दिस एब्सोल्युटली। ये सर्क्यूलर बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एंड डेफिनेटली वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सर्क्यूलर विच इज स्पेशली मेंट फॉर मैन पावर मेंटेनेंस। सो if you agree with this concept, we can move ahead. So do you want to make any such kind of arrangement for this company, Darshan bhai? Yeah, Nehal, I think I never thought of about this planning. So I think it's a very beautiful way where I never thought what happen if my key person maybe accidentally dies or if he leaves the job, and it's a very good point you said, is the maintenance of a manpower. So as I have my general insurance for factory, I have my car insured. So I think what about the manpower? So it is very good eye-opening thing which you have said, Nehal. Yes, so Darshan ji, ये इतना this is very easy one, and it is very beneficial to the company also. So यहाँ से friends, this is the concept clarity. अगर यहाँ पे agreement हमें मिला, then we can always crack this call. यहाँ पे 50% closing is the agreement of director for this concept. The 30% will be done with the solution explanation, right? And the 20% will be done with the discussion of any accountant or CA of that particular firm, because every good business setup always have accountant and dedicated CAs with them who plan their taxes and who maintain the book of business for that businessman, and who guide them also. But they are expert accountants, they are not expert life insurance agents. So our job can help a businessman for to understand this concept. And once the concept agreement is there, we can ask a structured question to that businessman regarding the firm that they state. Means if it is a partnership firm, then we can ask a question of partnership firm. We have that structured question with us, like if a partnership firm that have you thought that you are a creative genius of your firm and your partner is a expert financial accountant for this firm. So if something happens to the creative genius, so नई प्रोडक्ट का डिजाइन कौन करेगा? एंड क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि आपका फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा वो उसके ना रहने के बाद, या आपने जो सपने देखे हैं आने वाले 10 इयर्स के लिए फर्म्स के बारे में, वो सपने बरकरार रहे, उसके कुछ अरेंजमेंट्स, या आपकी फर्म की करंट वैल्यूएशन? क्या आप अपने फर्म की करंट वैल्यूएशन हर साल कराते हैं दर्शन भाई? Yeah, balance sheet में we get the valuation net worth, but not about the manpower. Manpower के ऊपर हम लोग Yes. एब्सोल्युटली. सो मैन पावर को की वजह से ये सारे वैल्यूएशन क्रिएट होते हैं, राइट? एंड वी आर टॉकिंग हियर टू प्रोटेक्ट दैट, बट वी नीड टू नो द करंट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. दैट इज नंबर वन, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल बी एबल टू डिसाइड फॉर हाउ मच अमाउंट वी कैन टेक कवरेज. Number two is, if we are talking about employer-employee concept, then definitely we need to take information about the salary that they are drawing, whether they are drawing salary or not, because there are so many kinds of directors. बैंक के पास से अगर उन्होंने लोन्स लिए हैं तो वहाँ पे से भी अकाउंट करने पड़ते हैं. अगर किसी पार्टनर को उन्होंने रखा हुआ है तो वो साइलेंट
डायरेक्टर भी रहते हैं, इनएक्टिव डायरेक्टर्स भी रहते हैं, एक्टिव डायरेक्टर्स भी रहते हैं. सो फर्म का सेटअप पूरा समझना है थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव टू आस्क देम अबाउट the ITRs that they are filing on regular basis, so that we can decide the sum assure. So sum assure उसके बारे में दर्शन ने आपसे बताया, मैं सुन रही थी, that 5 times of the net profit and or 3 times of gross profit, whichever is lower we need to consider. And we first of all, between the 4 directors or 2 directors, and there might be, I have seen 42 directors in a company also, and the percentage share is also important. And it is also known that हम अगर किसी 2 का करा रहे हैं, 4 डायरेक्टर का करा रहे हैं, not all directors are because सारे insurable भी नहीं होते. So we need to gauge the possibility of pitching कि यहाँ पे मैं क्या pitch कर सकती हूँ. So we should never jump on proposal for every director, proposal for 5 crore sum assured, proposal for 25 lakh premium. वो sum assured, premiums, number of directors सब हमको उन्हीं के मुंह से निकलवाना है कि for how many directors you would like to take insurance, who all are the active directors. Number 2 is we need to ask them कि if what is the percentage share that. चलो मेरा एक एम्प्लॉय का कॉल चल रहा है, आई एम कॉलिंग यू बैक इन few minutes. So we need to ask them कि if they want to take insurance, तो which kind of plan they would like to go for, whether they want to create corpus, whether they want to plan annuity, or whether they want to cover the death or the proceeds of any of the director. So उनके purposes के accordingly product हम pitch करेंगे. If we will pitch the product, then probably the escape route for director is there कि we don't want to go for savings, we don't want to go for इसका साथ comparison करो, उसका लेके आओ. So asking question will corner the customer, and then we will be able to gauge कि यहाँ पे perfect fit मेरा कौन सा है. Because once the director is agreed with the concept, once the director is agreed for particular product, once the director is agreed for the purpose why they want to buy this, ये किसके लिए कर रहे हैं, then they will not be able to back out. Chances of backing out will be less, and chances of closing will be increased if they will cooperate and answer your every question. So it is our flow that we need to design first of all before, and we need to do some pre-work also कि जहाँ पे हम visit कर रहे हैं वो private limited है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, या सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, या ट्रस्ट है, या बैंक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है. बिकॉज ये सारी जगह पे हम एम्प्लॉय भी कर सकते हैं. तो बिजनेस इंश्योरेंस डज नॉट मीन, बिजनेस इंश्योरेंस मीन्स जो 5 है वो दर्शन ने आपको बताया होगा, दैट पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर फर्म, एम्प्लॉय, MWP एंड HUF. सो ये सब जगह पे हम ये सब पिच कर सकते हैं. तो सबके पर्पसेस अलग होते हैं, right? Business insurance does not mean only employer-employee. What I have explained you is employer-employee. Majority बड़े cases employer-employee में आते हैं, and I myself have closed 55 lakh rupees of check in employer-employee. And 30 lakhs and 10 lakhs and 15 lakhs and 14 lakhs and I mean more than 12 to 15 checks I myself have closed for business insurance, and 3 times of more than that have not been closed yet open. I mean वहाँ पे ना नहीं आया है, so still it is open, and definitely we can follow this up. But we need to make a presentation, structured presentation, which gives them a very clear idea that what is our concept. हम जो बोल रहे हैं उसका प्रूफ भी, बिकॉज ऑल द बिजनेसमैन बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, एंड दे आर वेरी उनको सस्पिशियस चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट हो रही है, ऐसे डाउट्स उनके दिमाग में रहते हैं. सो आप जो भी बोल रहे हो उसका प्रूफ आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट कि सर्क्यूलर 573 सेक्शन 573 सर्क्यूलर 761, सो वो सर्क्यूलर के मेरे पास प्रिंट होने चाहिए. If I am saying that कि 37(1) के अंदर इसको क्लेम कर सकते हो, then I should have the 37(1) इनकम टैक्स का स्क्रीनशॉट जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होती है. ये सब चीज़ें हमारे पास हैं. दर्शन विल गिव इट टू यू, बट वी नीड टू बी
and you can Right. assist, particularly in your roles. You can assist the agent advisor by providing this presentation, structured point wise presentation, which agent advisor are always vouching for, and they are feeling very delighted if we give them this hands on things, and if we guide them with proper product, because many a times the CA and all the CS are having life insurance agencies in some or the other companies, and rarely they allowed you to enter into the crack to that nut, Right. because they will keep on raising concerns, they will keep on comparing products. So Right. product comparison, you should straight away discard that. You should always first of all state them that every company has one good product. Every company has one good product, and every company can give you a solution. But Mr. Darshan, you need to be very clear what you want. What is your requirement? Because every individual has a different question paper and the answers are different. So we should never compare our answers with anybody else's answer, and we should never, go with the comparison. For if X man has done this, it is his requirement. If you are doing this, it is your requirement. So this will eliminate further, comparison mode and arguments, and क्योंकि argument never leads to a sale, but Right. yeah, discussion will lead you to the sale. So I Right. think that's it from my side. If you want to ask me any question, it's open for you, Darshan. So Darshan, over to you. Yeah, thank you, Nehal, for such a long and informative pitch. I think whatever practical experience that you had in a field, I think that got reflected in your speech. So I think I just summarize what Nehal has said. Always I just noted down few points, Nehal here. See, always you should not start, Yeah. with the tax saving or something like a product. You know, you start with a beautiful concept which Nehal has said about manpower replacement. I think that word is very important, maintenance of your manpower. So if you talk about such concepts which many of the businessmen, because they are busy, they might have not heard about, not thought about, there is something which they can also do. There is a scope for doing something. If you talk about, if you touch upon that, touch upon that line, they themselves will tell you, yeah, this many employers. If your agent may say कि इसके एक employee के नाम पे करना है, but अगर आप ये touch point करते हो, so he may say कि I have 10 such employees where I think these are important for me. He only will give you the life to be insured. He only will tell you ये product मुझे होना चाहिए. He only will tell you इतना life to be, इतना term का cover होना चाहिए. And second thing जो नेहल मैम ने बताई हमें कि वेल प्रिपेयरनेस होना चाहिए. व्हेनेवर वी गो ऑन अ कॉल, वी शुड डू सम होमवर्क कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हु आर द डायरेक्टर्स, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है. सो ऑलवेज डू दैट, उसका क्रॉस चेक करना. एंड लास्ट थिंग, आई थिंक what she explained at the end, is that आप कस्टमर से सारी चीजें जो सीएस होते हैं उनके, या सीएस होते हैं उनके, जो अगर टाइप होता है उनसे, तो वो अलाउ नहीं करेंगे. चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर रहना है. द यूनिक बेनिफिट्स विच अवर कंपनी गिव्स, द यूनिक प्रोपोजिशन विच अवर कंपनी गिव्स, उसके ऊपर स्टिक करना है. बिकॉज ये ज्यादा करके हम, मुझे भी पर्सनली इसमें चैलेंज आता है कि व्हेनेवर वी गो ऑन अ कॉल, सब कुछ सही होता है बट वो क्लोजर नहीं आता है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि सीए या सीएस उनकी खुद की एजेंसी है. तो उस केस में भी आपका फोकस जो है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखना. And few basic insights and things which Nehal has given, I think which will be very useful for all of us. So thank you very much, Nehal, for giving us such a insightful practical thing. Friends, agar आपके कुछ questions, I know it is over time, we have extended by 10 minutes, but still last 2-3 minutes, if you have any questions, we will take and then we'll conclude the session. For Nehal ma'am, if you have any questions, please ask. Yeah.
any question, any So guys, if suggestion? you have any question, you can ask. Otherwise, Nehal is always accessible. She is in Yeah. Ahmedabad batch. She is an LPC, and for her, the definition of LPC is not life product consultant. It's legendary, passionate champion, we can say. So you can reach out to her on her number anytime, right? So, and Darshan is always accessible to us. So what we can do, अगर हमारे patch में if we identify there is any agent advisor who is having prospect for business insurance, so we can connect the concerned LPC, or that agent is on immediate need of assistance, we can reach out to Darshan as well, so that that call should not be hampered, right? आपको बस क्या करना है, दर्शन ने इनिशियली कॉन्वर्जेशन में बोला था, दिनेश ने भी बोला था कि हमारा काम क्या है ना, एडवाइजर्स को मोटिवेट करना है कि वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी बिजनेस करें। इंडिविजुअल बिजनेस तो वो करके ला रहा है, इंक्रीमेंटल बिजनेस के लिए क्या करना होगा, उसे पोर्टफोलियो अपना इनहांस करना होगा बिजनेस इंश्योरेंस में, एमडब्ल्यूपीए, एनआरआई, कीमैन की तरफ, राइट? सो बिजनेस इंश्योरेंस एक ऐसा पोर्टफोलियो है, जैसे नेहल ने भी बताया, जहां पे हाई टिकट साइज केसेस भी आ सकते हैं, right? And anyone can be the right person to approach who's having a business, and there is employees who is drawing salary, right? तो आपको ये खुद आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है. So we have to approach, we have to open a call, and we have a very good team who can assist us on this call. So initially मैं आपको यही बोलूंगा कि आई एम श्योर कि पहली कॉल के बाद कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता, मुझे भी, अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि मैं जाके एक एम्प्लॉय की कॉल को क्लोज कर सकूं, राइट? बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन मोटिवेट आवर एडवाइजर टू ओपन सच कॉल्स, right? And we can invite Darshan, Nehal or the respective LPCs, right? So that कि हमारी भी understanding उस purpose में better हो, and then ये benefit करे company को भी, को भी. This is what I want. Right, exactly, Yogesh. I think and JFM season is ahead, and I think हमारा more than 50% business जो है business insurance का, ये last 3 months में आता है. So it is, I think, very good time right now, to motivate your advisors to open business insurance calls. अभी call open करेंगे तो they will get appointment, and by the month of Jan Feb closure आ जाएगा, because this cases takes time. CA का meeting रहता है, approval रहता है, board का meeting रहता है, so big cases में time भी ज़्यादा लग सकता है. So start motivating your agents. We will again have a next session on next Friday, maybe I think on 16th if I'm not wrong. So we'll talk about practical aspect again more. I will invite some more expert on that, and we'll talk more about employer-employee and other business insurance concepts. So thank you very much, Nehal, So, again Darshan, for joining in. Before Nehal leaves, I just want to have a 2-3 question viva with Nehal. So Nehal, basis on your experience, कितने हम calls open करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि एक closer आता है business insurance में हमारा? At least 5. उसका closing ratio is 5:1. Yeah, at least 5 calls के बाद एक closure आएगा. See now, ये closure की बात नहीं है. This is about opening the call, because majority of the agent, उन्होंने ऐसा conceive किया हुआ है कि मैं तो किसी बिजनेसमैन को जानती नहीं हूँ या जानता ही नहीं हूँ, मेरे आजू बाजू ऐसा कोई है नहीं बड़ा आदमी जिसको मैं पहचानता हूँ, so I cannot open a business insurance call. राइट? सो बिजनेस इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, HUF एंड MWPA. सो बिजनेस इंश्योरेंस डज नॉट मीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ओनली. उनको ऐसा होता है कि बड़े केसेस एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ही मैं ओपन कर सकता हूँ. सो एक सबसे पहले उनका ये मिथ तोड़ना है. सेकेंडली वी हैव टू गाइड देम कि अभी मतलब बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देकर छोटे बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, राइट? दे आर ग्रांटिंग स्मॉल बिजनेस लोन्स, राइट? तो वो लोन लिए हुए जो सारे बिजनेसमैन हैं, उनका सबसे बड़ा थ्रेट है कि दे हैव टू रीपे द लोन एंड दे हैव टू सिक्योर द बिजनेस. तो वहां पे वो सारे बिजनेस, दूध वाला बिजनेसमैन है, राइट? वो एक ही के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, वो दूध वाला भी बिजनेसमैन है, दूध मंडली भी बिजनेस का सेटअप है, वहां पे भी आप पिच कर सकते हो. यू कैन लिस्ट डाउन
एन नंबर ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्ट, राइट, आप लिख सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और करना इसलिए जरूरी है बिकॉज बड़ी टिकट साइज बिजनेस इंश्योरेंस से आती है। I mean, Married Women Property Act also is one of a very good concept you can give to businessman, right? तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यहाँ पे आएगा। अगर कॉल ओपन करेंगे तो क्लोज होना आसान है। ये लाइन के अंदर कंपटीशन, बट मैं टेल यू यहाँ पे ऐसा है ना कि उतना माइल आपको चलना है जहाँ पे आपके साथ आपके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, उतने माइल दूर आपको जाना है। सो ये ऐसे वाली बात है, यू हैव टू प्रोस्पेक्ट वेर यू डोंट फाइंड कंपटीशन, लेस कंपटीशन। हेल्दी रहेगी बट बहुत कम रहेगी। मतलब यहाँ पे बिजनेस इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग जानते हैं, एंड वेरी फ्यू इवन एलपीसीज, आउट ऑफ एलपीसीज ऑल्सो, जबकि एलपीसी की पहचान ही बिजनेस इंश्योरेंस एंड एनआरआई है, फिर भी अगर आप देखोगे तो फ्यू आर हैंड्स ऑन विथ इट। मतलब आज आप पूछो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन से वाले टैक्स बेनिफिट कहाँ कहाँ पे मतलब टैक्सेबल कौन सी चीज होगी, तो प्रीमियम्स टैक्सेबल रहेंगे या मेच्योरिटी या डेथ बेनिफिट टैक्सेबल रहेगा पार्टनरशिप के अंदर। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप में मेच्योरिटी होती नहीं है बिकॉज वहां पे सिर्फ टर्म प्लान आप कर सकते हो। सो बोथ वे इट इज टैक्सेबल फॉर पार्टनरशिप, राइट? अगर प्रीमियम भरते हो और उसके बेनिफिट्स आते हैं, दोनों तरीके से वो टैक्सेबल है। ये लेवल का नॉलेज बहुत कम लोगों के पास आपको मिलेगा। तो नॉलेज अट्रैक्ट्स द कस्टमर। उसको ऐसा लगता है कि बंदा लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कुछ जानता है, तो आपकी जगह अपने आप बन जाती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, आज तक किसी ने उसको जाके बताया नहीं कि मैन पावर का मेंटेनेंस कैसे कर सकता है वो, एंड सेकंड लीडरशिप की फनल क्या होती है, ये किसी ने नहीं बताया उसको आज तक। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने डिस्कस कर लिया, पॉइंट टच कर लिया, एंड इफ ही और शी विल फाइंड यू कॉन्फिडेंट इन योर प्रेजेंटेशन, तो आपकी जगह अपने आप बन जाएगी। आपको दूसरी बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। फिर वहां पे सीए की कंपटीशन आएगी, वो एक अलग पॉइंट है। वहां पे हम इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं एजेंट का, या तो 3 C's यूज करते हैं कि या तो कस्टमर को कन्विंस करो, या उसको कंफ्यूज करो, या उसको करप्ट करो। आधा सीए को दे दो, आधा मेरे को दे दो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो बिजनेस इंश्योरेंस के अंदर करते हैं हम सब। हम Sure. So Nehal, secondly, I just wanted to ask, होने चाहिए, दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया टू डू दैट। आपको पता चलना चाहिए कि मेरी बिक्री कहाँ पे होगी, राइट? एंड आप कोई एक ही प्लान लेके बात करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ एनी ऑफ द एजेंट, या आप या कोई भी है, मतलब नेगेटिव नोट से बात नहीं शुरू होनी चाहिए कि आजकल हमारे यहाँ पे टैक्स इज वेरी डिफिकल्ट, सिचुएशन पेंडेमिक में पैनिक हो चुकी है, बिजनेस इज डाउन है। ऐसे आपने शुरुआत किया, दिस कॉल विल नेवर एंड अप इन पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो आप कंस्ट्रक्टिव बात करोगे तो ही बंदा आपको सुनेगा। So ये closing is to ratio is 5:1. योगेश। So second question I just wanted to ask, we understand that कि यहाँ पे high ticket size cases हमारे पास आते हैं 10 lakh, 15, 20, 50 lakhs cases भी आते हैं, but the average ticket size what we can consider as, मतलब बिजनेस इंश्योरेंस का एवरेज टिकट साइज आई डोंट नो, अभी तो बहुत आई मीन मे बी 5 lakhs का होना चाहिए। 2.5 से आप शुरू गिन सकते हो। इट माइट गो एज हाई एज 10 lakhs। So we can state with our advisor कि मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय कॉल के ओपन करते हो तो 2.5 लाख से तो स्टार्ट होगी, उससे नीचे रेयर ही केस होगा, कोई होगा, राइट? देन एवरेज टाइम कितना लगता है कॉल को कन्वर्ट होने में, स्टार्टिंग टू लॉगिन, मतलब एवरेज टाइम, सो दैट कि एडवाइजर को हम टाइम बता जाएगा मिनिमम। आई हाँ ये मिनिमम आई मीन 3 महीना तो मिनिमम लेगा कोई भी बड़ा कॉल। वैसे भी 1 लाख से ज्यादा प्रीमियम का कॉल अगर आप देखोगे योगेश, तो इट टेक्स टाइम ऑफ अ मंथ टू गेट कन्वर्टेड, सो ये मतलब मिनिमम 3 मंथ इट टेक्स। कुछ कॉल मतलब मैंने देखे 38 lakhs में भी 1 साल 2 साल के बाद 4 साल के बाद भी क्लोजिंग मिला है उसमें।
कि आपकी कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, आपकी परसिस्टेंसी, रिलेशनशिप, रेपो, आपके अचीवमेंट, एजेंट एडवाइजर के बहुत सारी चीजें मैटर करती है. बट मिनिमम टाइम इज 3 months टू गेट अ बिजनेस इंश्योरेंस कॉल कन्वर्ट. आई मीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. अगर आप MWPA करते हो तो 1 महीने के अंदर भी टर्न अप हो जाता है. HUF करते हो, HUF को टर्न अप होने में 1 साल लगेगा, बिकॉज एक बंदा HUF नहीं कर रहा है, उसको आपने HUF समझाया कॉन्सेप्ट, फिर उसका अकाउंट ओपन करवाया, फिर उसकी इनकम उसमें डलवाई, फिर उसमें से प्रीमियम का 1.5 लाख रुपीस आप निकाल पाओगे. तो इट माइट टेक 1 year HUF का कॉल, राइट. एंड पार्टनरशिप का कॉल माइट टेक 6 month, 4 to 6 month. बट ये 1 महीने से तो ज्यादा ही लगेगा. बट इट डिपेंड्स ऑन विच कॉन्सेप्ट यू हैव पिच्ड. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्लोज होने में 3 से 6 महीने लगते हैं मिनिमम. Right. So I think this is all from my side. If you have any question, please ask, guys. या Right? बट बाय द वे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो सबसे बड़ा चेक हमने क्लोज किया था ना 55 lakhs का, वो हमने 4 दिन में क्लोज किया था. या वही मैं बता रहा था. वी हैव क्लोज मेनी केसेस. सी, ये 3 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम, ये क्या है? दैट इंक्लूड्स फॉलो अप एज वेल. नहीं तो ये लोग डर जाएंगे कि 3 महीना केस में लगेगा. ऐसे नहीं होता है. वी हैव नहीं, डन. उसका नीड के साथ भी Right. कोरिलेशन है. बिकॉज Yeah. हमने जो 4 दिन में क्लोज किया था ना, वो कॉल के अंदर कस्टमर की नीड थी, ही वांट टू सेव टैक्स आल्सो, और वो मार्च महीने की 24 तारीख को कॉल ओपन हुआ था, या और 28-29 को लॉगिन हो गया था. सो क्योंकि उसको टैक्स बचाना था, तो उसकी जरूरत थी, तो उसने फटाफट से डिसीजन लिया. राइट. सो मोस्टली क्या होता है ना, व्हेन यू गो ऑन अ बिग कॉल, सो ज्यादा टाइम लगता है, वेयर सीए इज आल्सो इन्वॉल्वड. उसको टाइम मिलने में 7 दिन लगते हैं. 7 दिन बाद टाइम मिलेगा, फिर सीए फर्स्ट मीटिंग होगी, सेकेंड मीटिंग, तो इट टेक्स 2-3 months. बट वी हैव सन मेनी केसेस. जैसे आई रिमेम्बर देहरादून में एक 10 लाख का केस हुआ यही मंथ में. उसका कॉल, फर्स्ट कॉल जो था वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुआ था. फर्स्ट वीक में मीटिंग हुई, सेकेंड बार में सीए से मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग में क्लोज. तो ऐसे भी केसेस होते हैं. नॉट लाइक हर केस में टाइम लगेगा, बट डिपेंड ऑन आपका नेचुरल मार्केट है, एजेंट का पहचान कैसा है. दिस थिंग्स आल्सो मैटर्स. सो गो फॉर इट. आई थिंक द फाइनल वर्ड फ्रॉम माय हमारा साइड. एक 15 lakhs प्रीमियम का जो था ना केस, 15 lakhs प्रीमियम का, वो केस कैसे क्लोज होता? बिकॉज एजेंट वाज फ्रॉम अहमदाबाद एंड ही हैज अप्रोच्ड अ बॉम्बे क्लाइंट. तो वो फ्लाई करके बॉम्बे गए थे. कस्टमर को उसका क्रिटिकलिटी पता था कि बंदा फ्लाई करके बॉम्बे आया है, तो मेरे को आज उसके साथ डील फाइनल करना पड़ेगा. और वो 1 दिन में ही हो गया था. सुबह कॉल ओपन किया, शाम को हमारे हाथ में 15 लाख का चेक था. सो बहुत सारी बातें इसमें मैटर करती हैं क्लोजिंग के अंदर. So Darshan and Nehal, I just, why I am asking these questions, because क्योंकि हम एजेंट्स का अपना बिलीफ बिल्ड करने के लिए ये पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे. और समटाइम्स क्या होता है ना, एजेंट्स डिमोटिवेट हो जाता है इस चीज को लेके कि भाई इतना टाइम लगता है एंड ऑल. सो अगर हम इस चीज के लिए अवेयर हैं, सो राइट, वी कैन कीप ऑन मोटिवेटिंग हिम. एंड देखो, मोटिवेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता किसी एडवाइजर को किसी चीज को करने के लिए, बट इंटैक्ट रखना उसे उसी स्टेट ऑफ माइंड में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अदरवाइज वो फॉलो अप छोड़ देगा, एंड देन वो जो आपने एफर्ट्स डाले थे वो वेन हो जाएंगे, राइट. सो अगर आपको आइडिया है ना कि इट कैन टेक 3-4 months, सो दैट आप जब भी उससे बात करते हो, देन यू कैन डिस्कस. आप बता सकते हो कि सर इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, यू जस्ट फॉलो अप, इट विल टेक टाइम, राइट. एंड Darshan, if we can Correct. create a just 4-5 lines or maybe a statement or something which we can incorporate in our daily calling schedule, so that while introducing in employer it can be a great help, right. मतलब 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ या कुछ भी अगर हम बनाए, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर we can say for employer with our agent advisors, it will help. Yogesh, surely we actually have few enablers, few sales speeches, one pager, introductory email, that I will definitely share. We will have a separate session for that, sales speeches of Sure. our employee. Apart from that, there is in pipeline, we have a business insurance. We have a business insurance booklet that is, marketing team is working on that. So I think this will be open in the first week of Jan. So that also I will share. It will definitely going to help all of us. So definitely we are going to share all these things.
Sure. So thank you so much. Thank you. Nehal, again, Yeah, I would like thanks. to thank for a valuable insight and, arranging, coming on this call on such a short notice. Sure, nice to meet all of you on. Thank you Yeah, so much, Nehal कोई ma'am. बात नहीं. Thank you so much sharing for your Thank coming. you. ऐसी है. Thank you all. Thank you. Darshan sir. Thank you so Thank you, much. Darshan ji. Thank Thank you, you all everyone. for Thank you. attending. All the best, Thank you. friends. Bye.